It's a clash between a team at the top of the standings and the defending champions. There has been no stopping for Sindh so far, with Sharjeel providing a good start and Sarfaraz guiding the middle order. It was yet another solid batting performance in their last game. He said that superbly. That is a wonderful, wonderful stroke. That's gone for 6. Zahid Mahmood and Shahnawaz Dahani proving lethal as they dismiss Balochistan with 98 on board. What a beautiful delivery. For their 3 wins in 3 games. The high-flying Khyber Pakhtunkhwa were brought down a peg in the last game, losing to home city Central Punjab. But they have a formidable batting lineup, rich in international experience. वेलकम। मैच 12 की बारी है और जीएफएस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला है और दोनों पाकिस्तान के विकेट कीपर अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनकर रिंग में उतर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं। इस वक्त जीएफएस सिंध लीड कर रहा है, 3 में से 3 मैचेस जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 3 मैच खेला है, 2 जीता है और 1 हारा है। आज के इस मैच में मुकाबला इसलिए भी अच्छा है कि आज ये फैसला होगा कि नंबर 1 पे आज रात कौन जाता है और कौन एंड करता है। जीएफएस सिंध की यही कोशिश होगी कि जहां हैं वहीं रहें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी आसानी नहीं देने वाला अपने ऑपोजिशन को। आज मरीना इकबाल मेरे साथ है और मरीना को वेलकम करते हैं शो पर। मरीना, एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है इस बार जो जीएफएस सिंध की टीम नज़र आई है। पिछले नेशनल T20 के मुकाबले में एक बड़ा कहते हैं कॉम्पैक्ट सा यूनिट है, हर चीज़ में सही फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अगर आप देखा जाए तो जो प्लेयर्स को जिम्मेदारी दी जा रही है वो बखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग साइड हो चाहे बैटिंग हो। इवन स्पिनर्स भी अब उनके ऐसे आ गए जो कि जिम्मेदारी लेके स्पिन कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी कंपोज्ड साइड है। स्पिन की हम बड़ी बात करते हैं, स्पिन का बहुत कुछ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की टीम को देखें तो उनके पास कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है। ज़्यादातर अपने पेसर्स पे डिपेंड करते हैं और काम भी आ रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस पेसर्स है उनके पास। इमरान खान की बात करें तो इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो लीड करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे इवॉल्व हुए हुए हैं, इस फॉर्मेट में भी आप देखें तो परफॉर्म कर रहे हैं। आसिफ अफरीदी थोड़ा बहुत बीच में आके इफ्तिखार के साथ थोड़ा सा एज दे सकते हैं, लेकिन रिजवान लाइक टू रिलाई ऑन पेस। चलिए, रात का मैच है, लाइटें ऑन हैं, फैसला करना पड़ेगा, लेकिन पहले पिच देखेंगे माइक हेजमन के साथ। Okay, so what can I tell you about this pitch? Righto, 200 runs were scored batting first, and 200 runs were chased down quite easily. That's 10 runs and over. That's what I got for you. That's a beauty. Oh, okay. All right. I'll give you a little bit more. Okay. This track is one of the finest pitches you'll see for a T20 game. It's just magnificent. It was just coming onto the bat superbly. It is just going to, the bounce is there as well. It's a fresh track. It's the first time it's been used in the tournament. I've got a package I want to show you as well. Now, this is Shahzad. This is early in the innings, by the way, the new ball. Shahzad, have a look at these boundaries. This is 5 fours in 1 over. All these shots, he's trusting the bounce of the surface. He's trusting the pace on the surface. And it's just magnificent work. The fact that he's just, the track is coming on superbly, and the batsmen love that. The bowlers, of course, are not that keen on it, but the batsmen absolutely love it. So this surface is going to be really hard work for the bowlers. There wasn't much spin either, so they're going to have to really have their work cut out. Also, they're going to have to come up with something a little bit different here because it didn't work in the first game. They're going to have to really work hard on this to make some sort of inroads, and I guess hope some batsmen make a mistake or two. Mike has been going off at 400 runs. That should have been enough. Of course, इतने ज़्यादा रन बने हैं इस पहले मैच में कि अब आई थिंक जो कप्तान करेंगे टॉस तो उनको फैसला करने में इतनी मुश्किल होगी नहीं कि यहाँ क्या करना है। इतने सारे रन्स अवेलेबल हैं, अच्छी पिच है। बिल्कुल, आज तो ऐसे लग रहा है सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं। जो भी शॉट मार रहे थे बल्ले पे आ रहा था और आज कंट्रोल के साथ बैटर्स ने खेला तो कोई खास मुश्किल नजर नहीं आई। अब देखना ये होगा कि टॉस के टाइम पे करना क्या चाहते हैं। हम जानते हैं सरफराज जो हैं उनको शौक है चेस करने का, लेकिन इस बार अलग कुछ फैसले हैं उनके। चलिए टॉस को ज्वाइन करते हैं बाजिद खान के साथ। Right, it's time for the toss in the evening game today. We saw an exceptional game. The first game, we've got the 2 captains, Sarfaraz and Rizwan, match referee Iftikhar Ahmed. Sarfaraz, I believe, have the coin? Tail. Tails is the call. Tail it is. Yeah.
टेल है, आप जीत गए टॉस, क्या वाह। करोगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे। और पहला मैच देखा कि वैसे ही कर रहे हैं? नहीं वैसे भाई टास्क का कोई मैं कभी इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ना रिजल्ट पे ना टास्क पे, एफर्ट पे बिलीव करता हूँ कि जिस तरह लड़कों की एफर्ट होगी। अगर आप देख ले तो जो शुरू में मुश्किल पिचेस थे तो उसमें हमारी टीम ने 188 कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उस तरफ पिचेस थे। और हमारी बॉलिंग जिस तरह है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पर काफ़ी हमारी स्ट्रेंथ वही है ज़्यादातर। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इसको स्टिक किया जाए। सरफराज, अगर ये मैं सवाल ना पूछूं तो ज़्यादती होगी, कीपर कैप्टन कितना आसान होता है? दोनों आप कीपर हो। देखिए आसान हो जाता है, ऑब्वियसली आपको पीछे से काफ़ी सिचुएशन नज़र आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन मुश्किल भी है क्योंकि आपको अपनी सारी चीज़ों के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। रिजवान, इस सिचुएशन में क्या मतलब एक चीज़ बताएं जो एक्सेप्शनल करेंगे तो मैच जीतेंगे? मेरे ख्याल से जी जो बॉलर की एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि पिच जिस तरह नज़र आ रहा है काफ़ी बैटिंग ट्रैक लग रहा है अभी तक, तो उसकी एग्जीक्यूशन जिस तरह मेरे ख्याल जो टीम ज़्यादा अच्छी के तरीके से करेगी, फील्डिंग अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रिजल्ट उनके पास जाएगी। सरफराज, बहुत स्कोर हुआ है इस पिच पे, मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी पिच है, तो बैटिंग के लिहाज से ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखें बैटिंग ये है कि अब आज जो पिच जिस तरीके से खेला है, दोनों टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया है, तो आज के मैच में ये कि हमें भी अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 175 प्लस रन स्कोर करने पड़ेंगे अगर आज का मैच जीतना है तो। सरफराज, आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी फ़खर जमान बैक और इसरार की जगह। सरफराज, आपकी टीम में कोई सेम टीम है। सेम टीम है। So the news out here in the center is that Khyber Pakhtunkhwa have won the toss and are having a bowl. तो केपी ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। देख लेते हैं कुछ तब्दीलियां अगर हैं तो। जीएफएस सिंध ने तो कहा कि हम ऐसे ही जाएंगे, 3 में से 3 मैच जीते हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है कुछ चेंज करने की। और खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं, एक तब्दीली है और अच्छी खबर ये है कि फ़खर जमान जो है वो वापस आए हैं। पिछले मैच में इंजरी के बायस वो मिस आउट कर गए थे, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि काफ़ी रिलाई कर रहे थे रिजवान पे और उसके बाद फरहान पे काफ़ी रिलाई कर रहे थे, तो एक एज इनको मिल गया बैटिंग में। इन दोनों टीमों का अगर मुकाबला करें, देखें कि हम रन्स तो बहुत सारे अवेलेबल थे, तो क्या चीज़ है जो बैटिंग को ज़रा रोक के स्लो कर सकती है? जल्दी से एक जवाब लेते हैं कि बॉलिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ किस टीम की नज़र आ रही है आपको? देखें ओवरऑल बात करें, केपी अपनी बॉलिंग पर रिलाई करता है, लेकिन आई थिंक अभी तक जिस तरह के सिंध के बॉलर्स ने कॉम्पैक्ट रखा है, वेरिएशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट एरियाज में पेस के साथ भी अच्छे एरियाज हिट कर रहे हैं और स्पिनर्स भी उनके तगड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आई थिंक अभी फिलहाल एज जो है वो सिंध को ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा है कि पावर प्ले में फास्ट बॉलर्स, उसके बाद बीच का सारा रास्ता संभालते हैं स्पिनर्स, और उसके बाद फिर एंड में शाहनवाज दहानी आए, 3-4 विकेटें लें, तो 175 का टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उससे प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरफराज, क्योंकि पहले बैटिंग करने की दावत दी। इतना काफ़ी होगा? मेरा ख्याल है कि इनको जाना चाहिए 180 के करीब, क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ है, पावर हाउस है, बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं इंक्लूडिंग सरफराज, और केपी को अगर थोड़ा तगड़ा इनको देना पड़ेगा टारगेट, क्योंकि उनकी भी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, लेकिन स्पिनर्स पे लैग कर रहे हैं। देखते हैं कि स्पिनर्स का क्या रोल होता है, बट आई थिंक 180 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, स्पेशली इस विकेट पे। 180 प्लस तो करना ही पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरीना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। तो सूरत हाल क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीत के कहा हम चेस करेंगे, और रन फेस्ट है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे हाई स्कोरिंग गेम हो आज भी। 12वां मैच है ये नेशनल T20 का, मुकाबला सख्त होगा जीएफएस सिंध और केपी के बीच। विल सी यू विद द गेम।
Here we go for match number 12, and it should be an absolute beauty. Really should be a fascinating game to watch. Sindh versus KP. Sindh are the side that is batting first. They are top of the pops, by the way. And Mohammad Rizwan, the captain of that side, won the toss and elected to bowl first. Sarfraz, the captain of Sindh, said that he would like to get a score of around about the 175 mark. Now, 401 runs were scored in the earlier game today, so this track is an absolute blinder. The bowlers are going to have to be at the top of the game, that's for sure, to make sure they get in the right areas for starters, some variation, and there's going to be no margin for error, really. Shajil Khan is one of the opening batsmen. 115 games, very experienced, likes to give it a bit of a nudge, strike rate of 140. You can see that he's got 300s in this format, with the best of 117. And he's got a partner that he can dovetail with quite nicely. Shan Masood, mature cricketer, that's how I like to describe him. He's a very likeable person. I think he's a very good cricketer as well. And he will certainly play the foil perfectly. He'll rotate the strike for his partner as much as he possibly can. He's certainly someone who's got some strokes himself, so let's not negate that. But they're up against this guy. I am a massive, massive fan for Shaheen Shah Afridi. 21 years of age. Yep, that's all. 21 years of age, 6'5", left arm, bowls 145, 100, maybe a little bit quicker at times. K's per hour, swings the ball, gets bounce. Always in the right areas, burst on the scene. Actually, I think the first time he burst on the scene properly in international cricket, I saw him at Supersport Park, a test series in South Africa a couple of years ago, where he was absolutely brilliant, picked up some wickets there. But he is really, really special, this guy, and I've said this before, but I'm going to say it again. I hope everyone in Pakistan realizes exactly how good this man is. Sana, how you doing? I'm good. And talking about Shaheen Shah Afridi, I remember there was a farewell for the under-19 team that was going to the World Cup. He was there and we had a selfie together. I was attending the event and I had to stand up on stage even when he was under-19. He's a big guy, that's for sure. He will get bounce on the surface. If you weren't with us earlier today, this track, well, you're just joining us now, this track is the first time it's been used in the tournament, and it is a beautiful batting track. It's got some pace in it, it's got some bounce. GFS Sindh versus Khyber Pakhtunkhwa. Here we go. First ball from Afridi. In the air, out of the blocks quickly. Opening their account are Sindh. 131 kilometers per hour. Not 100% in control of that shot, Shan Masood. We saw there was a bit of movement and extra bounce up front with the new ball. And I'm sure Shaheen Afridi will exaggerate that and exploit that. They might be hurting a little bit, KP. They were top of the table not so long ago. They're now at number 4. Sindh have taken over that number 1 spot. Ah, that's interesting. He's got a rag straight away. I presume that's just for perspiration at this stage. They've added another slip for Sharjeel. 2 slips in place. We'll have to watch for a bit of dew later. That's cracked away. What a shot. Bit of swing, and that disappeared before. That's a beauty. Couple of slips, but not the length, the right length, and Sharjeel was up on it. Look at that. Powerful hit. Full authority, Sharjeel Khan. It was wide, it was short, it was there to be hit. And the fact that he hit it so far in front of square shows how quickly he picked it up. The form that he feels is in. A spanking shot. And that's not generally the length that Shaheen Shah bowls with. He wants to go full with the new ball. But up till now, we have seen a bit of the shorter length from him. Maybe he's reading the pitch a little differently. I'm going to be fascinated to see what the bowlers do in this game. How they quieten batsmen. Because no one could shut anyone down, actually, in the first game. 10 runs and over, 200 chased down.
Interested to see what they go about. Already there's a change in the field, so second slip has gone out and more protection in the cover region. Leg side whipped away, couple of bounces, just the one bounce actually, and it's getting away for 4. And already we can see that on this pitch it's easier to play on both sides of the wicket. One wicket, one boundary on the offside, the other one on the leg side, over-correcting Shaheen Afridi on this occasion. So what does he do now? Let's see how he reacts to this. Premier fast bowler, elite fast bowler. Difficult in this format on this sort of surface. Let's see how he reacts in the last 2 balls. It's good delivery. Here's a look at some of the scores or some of the shots in the previous game where he got 43 off 25. He played some terrific shots. Doesn't move the field that much, but gee, he's got some power. Really nice work. Loves that pull shot. Over the top of extra cover, and that's scooted away for another boundary. What a beautiful strike that is. And what a good over for Sindh. 13 from it. 1 gone. Have a look at these batsmen for GFS Sindh. 140 the strike rate for Shaheen. Shah Masood 120. Karoon Mansour is a fine player as well. Shakil 130. Danish Aziz 140. Anwar Ali, now he can give the ball a tap, that's for sure, with a bat. He's been expensive with the ball. That's been a bit of an issue for him. But I've always liked him as a cricketer. He's a big 100%er. So they've got some guys that can give the ball some taps, and some guys I think that will enjoy the surface. It's been an expensive side so far in this tournament. Imran Khan Senior. Overall going at just over 6.5, sorry, 7.5. Cries of catch it, but grasped, I think. And Imran Khan Senior comes into bowling and creates a chance. Asif Afridi, the fielder there, dropping that one. It was an easy catch. Third man was up in the circle. This should have been taken at this level. Yeah, you can't give batsmen a chance tonight, that's for sure. Baba Abzam got a chance earlier today when he was should have been given an LBW when he was 12, and look what happened. He went and got 100 in no time and played so absolutely superbly. Don't let me take anything away from the knock, but you got to take your catches. Dragged away on the onside. Outfield's quick. That's going to go. Put the glasses down. And this man is back on strike because of that drop catch. Single was taken. Shaheen Masood on the non-striker, and Sharjeel Khan giving the same treatment to Imran Khan Senior that he gave to Shaheen Afridi. And Imran Khan needed that because he's been going at 9.34 in this edition of the National T20. He has taken 6 wickets, so that's been a positive. So you'd like to get in this game early and get his runs per over down. Swing and a miss. And to do that, he will need support from the fielders. This is from the last over. This is the work from Sharjeel Khan. Have a look at these shots. A bit straight at that time. Leg side is whipped away. Pounced on that. Over the top of extra cover. Take a snap if you're a photographer. Hold that pose. There you go. Snap, snap, snap. Beautiful shot. Not according to him, though.
Couple of dot balls after that drop catch, 4 runs, already an eventful over. And that's the drop catch. The first delivery, Asif Afridi making a mess of it at this point. You're just in. Your bowler has created a chance. You need to take these. Okay, 5 off 4. Let's see how he finishes. It's wide, and there's no one down there. That's another boundary. 4 more runs. And Sharjeel Khan is playing with freedom. Whatever length and line he gets, he's throwing his hands at it. Thick edge over the third man fielder there for 4 runs. Well, that's money for jam, that shot. Short ball, no one down in that region. 2 men allowed outside the circle, and there's one at deep backwards square on the leg side, and there's one at cow corner on the leg side. There's no one on the fence on the offside at all. So if you happen to miss hitting that for a boundary, then you've missed out badly. Right, reset. Imran Khan, last ball. Good bounce, good carry through to Rizwan. Dot ball, priceless. 22 for none. Let's have a look at the guys that the captain can bank on a bit here. Normally Imran Khan Senior down at the bottom, 7.6. Normally Afridi, who's bowling now. Nicely bowled. A yard quicker, I think, that delivery. Yep, 140 k's per hour. Oh, what have we got? It's 20 to 8 local time. Where's that? Son, I'll leave you to it. That's the popular bun kebab. I'm gone. Good for vegetarian options as well. Sometimes we just have the lentil patty in it and all vegetables. It looks amazing. Leading edge. Still scampers 1. That's all Shan Masood has to do with the kind of hitting Sharjeel is exhibiting at the point. All he needs to do is take a single, get off strike. He was lucky to get a bat on that. Otherwise, it would have been plumb. Just a reminder to scan that QR code to win exciting prizes. That is superbly picked up. And that is outstanding fielding. That is magnificent work. That's brilliant fielding by Musaddiq Ahmed. We saw a misfield in the last match, but in this match, he has come back very strong. Just look at that. This ball was traveling. One-handed pickups definitely saved 3 runs there. That is superb. Now that sort of thing can really lift a team, lift a bowler as well. That sort of thing also can provide a little bit of good fortune. It's really good to see him diving with his hands in front. Last time we were talking about how he was sliding down with the legs, moving forward. It's a great comeback from him, and good to see this kind of commitment in the field. He had no time to react. Very good over so far. Leg side. Want to keep bowling to Shan Masood at this stage, clearly. You don't want to get Sharjeel back on strike. That's what
KP would be pretty happy with. That single's got the aggressor back in the zone. And that's the class of Shaheen Afridi. He went for runs in the first over, has come back really strong. Can he finish well here? Two fielders on the leg side on the boundary now. A little bit of oh, it's past the man up mid-on. That's going to go, I think. Yes, it is. So a little bit of good fortune, but it's an indication of how quick this outfield is. That wasn't anywhere near the middle, and I guess how good the bats are as well. 7 off, 29 for none. It's up to your key bowlers, Afridi and Imran Khan, to set a tone at the start. They haven't done that. They're going at 10 runs and over at this stage. Change in field now. He was bowling with 6-3 with both fielders on the leg side and boundary, but this time deep point has been taken, a better field setting. Probably bowl leg side or a bit tighter. No, that's fine. Straight to the man where he put him there. I was hoping it wasn't a fill position for a bad ball. It wasn't. That was the 4 on the last ball. It was not fully middled, but again, a good effort, but could have been saved. Asif Afridi again. Shaheen Afridi really wanted a better effort there, but 4 runs of the last delivery. Bit of an umbrella field actually on the offside. You got about a third slip, a deep gully, backward point, cover, extra cover. Bowler was excited at that. He thought there was a bit of a neck, didn't carry anyway, so it didn't matter. Change of pace there, 117 kilometers per hour. That's why I didn't carry to Rizwan as well. 6 fielders on the circle on the offside. He's bowling outside off. It's quite easy for Sharjeel from here to get a boundary if he contacts properly. There's that half circle. The fielders in the cover region. Means there's not many guys on the leg side. Certainly can't bowl straight, that's for sure. Not totally convinced that Rizwan's got this right. That was a good delivery. 1 for the over from Imran Khan Senior. Now the Osaka question of the day: which former Pakistan captain scored over 8,800 runs in tests with a triple century? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. Which former Pakistan captain scored over 8,800 runs in tests with a triple century? Missed out. That's what he was waiting for. Something leg side, just a whip away for an easy boundary. Missed out, just the one. Can he keep GFS Sindh quiet in this over? 2 off it, 4 balls gone. And the good part about that is that Shan Masood's back on strike. So he will hit a bad ball, of course, for 4. He's a very good player, but he won't improvise, whereas Sharjeel's the sort of bloke who will improvise and have a bit of a swing of something if it's wide. He had a dip. No connection, though. Another dot ball. And the seam movement and bounce we were talking about that this pitch is offering.
to the fast bowlers. Just look at that. Moved quite late. Rizwan did really well to collect that one. A lot of keepers actually get a mattress organised, a single bed mattress organised at training, so they can practice their diving and their catching like that. I know that a couple of keepers in South Africa over the years have done that. One, Ray Jennings, used to always carry a mattress around with him, which was a bit excessive for training, I thought, but still. Right, last ball of the over. Slow delivery. There is protection, so it's just one. That is a great over. That really is. All things considered, that's brilliant. 3 runs only from it. 4 overs gone, 32 for none. Middle, bowling change. Right arm bowling over. अरशद इकबाल को लेकर आए हैं अटैक में। 4 ओवर्स में 32। दोपहर का मैच जरूर देखा है दोनों रिजवान और सरफराज ने, और उसी के बेस पे कुछ स्ट्रेटजीज तैयार की होंगी। चेंज तो कोई भी नहीं है जीएफएस सिंध की टीम में। फखर जमान जरूर आए हैं केपी की साइड पे। बड़े स्कोर की उम्मीद भी है, और यही टॉस पर भी था कि 175 से तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे अगर यहाँ कुछ जीत के लिए जाना है। तो उस हिसाब से अच्छा आगाज़ बुरा नहीं है। विकेट नहीं गिरा है, ऑलमोस्ट तकरीबन 8 रन की औसत से खेल रहे हैं। लेकिन सिकंदर, सवाल यह है कि कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा जाए केपी के सामने। 200 रन सेंट्रल पंजाब की टीम नहीं बचा सकी। उनकी टीम में बड़े बड़े नाम थे उनकी बॉलिंग में, क्योंकि ये पिच जो है ये सबसे अच्छी है इस पूरी चैंपियनशिप का। अगर हम जायज़ा लेते हैं तो ये बहुत मुख्तलिफ है। आप ऑन द राइज खेल सकते हैं। आउटफील्ड हमेशा की तरह तेज़ मूवमेंट ना होने के बराबर रही। स्पिनर्स के लिए भी मगर यकसर नहीं। देखिए, पहला मैच जो हमने अभी देखा था वो कहीं ना कहीं आप समझिए बॉलिंग का शिकार नज़र हो गया। दोनों ही साइडों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जहां बात आई सेंट्रल पंजाब की स्कोर को डिफेंड करने की, इसमें उनके सबसे अच्छे बॉलर रन्स ना देने के हिसाब से वहाब रियाज थे। उन्होंने अपने 4 ओवर पूरे नहीं कराए। स्पिन ऑप्शन नहीं था। आपने पूछा यहाँ कितने रन सिंध बनाना चाहेगा, 175 प्लस करें, 180 के उसमें ले जाएं जुमरे में। तो इनके पास बॉलिंग के ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं, वैरायटी बहुत है इनकी बॉलिंग में। इनके पास स्पिन के लेफ्ट आर्म स्पिन भी अवेलेबल है। इनके पास जाहिद महमूद में लेग स्पिन भी है। इनके पास दहानी टाइप फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो कप्तान जो है वो अपने काफी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं सरफराज। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि 180 तक तो जाना ही जाना चाहिए। जी हाँ, और फिर ये भी सोचना होगा कि केपी ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ रन चेज करते हुए चंद दिन पहले वो मैच हार गए थे बहुत बुरी तरह। तो इसलिए उन पे दबाव आ सकता है, क्योंकि कोई भी टीम जो है वो लगातार 2 मैचेस नहीं हारना चाहेगी, ख़ास तौर पर अगर आप दिफाई चैंपियन भी हों। ये अपनी हार्ड लेंथ से थोड़ा बॉरी करेंगे, परेशान करेंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। यहाँ बॉलिंग अच्छी हो रही है। शर्जील खान ने पहले ओवर में 13 रन बनाए थे शाहीन आफरीदी के।
और उसके बाद से ये ओवर तो बहुत ही अच्छा रहा है। अरशद अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं। पिछली 4 गेंदों में उन्होंने एक भी रन शर्जील को नहीं बनाने दिया और बाउंड्रीज आए हुए भी 11 गेंदें गुजर गई। लगता है अरसा हो गया। इतना अच्छा ओवर गया है, एक ही रन दिया अभी तक आखिरी गेंद इस ओवर की। शायद वापस करनी पड़े और आउट। अपील की थी और बहुत ही हैरान है इस वक्त शर्जील इस डिसीजन से। मुझे लगा कि ये शायद वाइड हो जाएगा, लेकिन अपील करा, हाफ हार्टेड अपील थी। अरशद इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था अंपायर से और उन्होंने थोड़ा सा इंतजार करके आउट करार दे दिया। यहाँ इम्तियाज इकबाल अंपायर हैं। देखिए ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और लगता ऐसे है जैसे ये बल्ले से दूर गई, क्योंकि रिजवान जो हैं उन्होंने तो अपील की भी नहीं और सिर्फ देखा था बॉलर ने पीछे मुड़कर। देखिए यहाँ पर ये सरापा हैरत शर्जील खान, लेकिन हतमी फैसला है अंपायर इम्तियाज इकबाल का। तो शर्जील जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो चले 20 गेंदों में 25 बनाकर 33 पर 1। तैंतीस पर 1 खिलाड़ी आउट 5 ओवर्स के खिताम पर और नए बैट्समैन आए हैं खुर्रम मंजूर। शानदार इनिंग्स थी पहले मैच में इस नेशनल T20 की खुर्रम मंजूर की। ये है शर्जील और ये है इनकी विकेट। बताइए तारिक साहब क्या हुआ यहाँ? जहां ये तो गेंद दूर लग रही है, इस बार एज होकर गई, खसब ठीक ही था और रिजवान को भी कलेक्ट करने का मौका नहीं मिला। देखिए अभी तक हजम नहीं कर सके अंपायर के इस फैसले को शर्जील खान। देखा लगता है ऐसे जैसे लेट हो गए थे इस शॉर्ट डिलीवरी पर। और देखिए आमतौर पर जो बॉलर हैं वो इस तरह का सवाल पूछते हैं अंपायर की तवज्जो हटाने के लिए कि वो वाइड ना दे, खासतौर पर जो गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल रही हो। आपकी माहिराना राय क्या कहती है? लगा था गेंद कहीं किसी हिस्से को जिस्म के, हाथ के? लेकिन सिकंदर एक तस्वीर कहते हैं कि वो 1000 अल्फाज से ज्यादा भारी होती है और शर्जील की ये जो तस्वीर हमने देखी है ये ऐसा ही मंजर पेश कर रही। जैसे कि कुछ मामला जो है वो बैट्समैन के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस ने बता दिया। लेकिन सिंध के एतबार से अगर हम देखते हैं तो इनके तमाम ही बैट्समैन ने रन बनाए हैं इस पूरी चैंपियनशिप में। खुर्रम मंजूर 84 रन की इनिंग्स खेले हुए हैं। शान मसूद ने भी पिछले मैच में चंद झलकियां दिखाई थी कि वो भी वापस आ गए हैं अपनी फॉर्म में। थोड़ा सा फुटबॉल खेलते हुए गेंद आगे चली गई। खुर्रम मंजूर ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल 18 के 18 एडिशन खेले हैं नेशनल T20 के। उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, ज़्यादा कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सबसे बड़ा वर्ड है। 4 सेंचुरीज हैं इनकी T20 में। आज बाबर ने 6ठी सेंचुरी की और उस फहरिस्त में ये शामिल हैं। ये इनके 84 रन थे 49 गेंदों पे, जिसमें चारों तरफ खेलते हैं शॉट्स। जहां ये लेग साइड में खासे स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे पुल शॉट भी लगाए, स्वीप शॉट अच्छा करते रहे। स्पिनर के खिलाफ बहुत वसी तजुर्बा है
खुर्रम मंजूर का पाकिस्तान के लिए 2009 में पहली बार टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल खेले थे। श्रीलंका की टीम आई थी महिला जयवर्धने की कप्तानी में पाकिस्तान। रफ्तार में रद्दोबदल किया, लेकिन इस चाल को समझ गए थे खुर्रम। उन्होंने नरम हाथों से खेल दिया 1 रन के लिए। देखिए बाबर आजम ने आज अपनी 6ठी सेंचुरी बनाई। खुर्रम मंजूर भी इस ज़िम्न में ज़्यादा पीछे नहीं है, 4 सेंचुरी बनाए हुए हैं। ये इनिंग्स भी इनकी कम है। मुख्तार अहमद की भी 3 सेंचुरी हैं, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में नहीं है। आप देखिए 4 सेंचुरियां 119 इनिंग में, बाबर 185 इनिंग्स में 6 सेंचुरीज हैं। पाकिस्तान के नेशनल T20 कप में पहली सेंचुरी किसने बनाई थी? मैं नहीं था। पहली सेंचुरी पाकिस्तान के ऑल ओवर कह रहे हैं जितने नेशनल T20 हुए 18 के 18 की जानिब से पहली नेशनल T20 सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई थी? मैं आपको एक दे सकता हूँ हिंट। ये पहले ब्राइटो फैन ऑफ द मैच कि वो विकेट कीपर बैट्समैन थे। मेरे बराबर से आवाज है ये मोइन खान। क्या ये सच है? जी हाँ, ये 100% सच है। जब पहला नेशनल T20 हुआ था लाहौर में 2005 में, तो अच्छा खेली थी उसमें कराची की टीम, लेकिन नीचे रही। अच्छी बॉलिंग, पिछले दोनों ओवर्स में बिल्कुल सर उठाने का मौका नहीं दिया इन टॉप ऑर्डर बैटर्स को पेसर्स ने। 38 पे ये पावर प्ले इस तरह से खेला है जीएफएस सिंध ने। 18 गेंदें डॉट रही हैं, यानी 3 ओवर डॉट बॉल्स में गए हैं। बाकी 38 जो हैं वो बाकी मानदा 3 ओवर्स में बने 18 गेंदों पे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ स्पिन को लेकर आ गए रिजवान। इफ्तिखार अहमद अपनी ऑफ स्पिन करेंगे, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। पेस को स्लो करना है। इंटरेस्टिंग फेज होगा क्योंकि ये पसंद करेंगे खुर्रम मंजूर इस पेस को। ऑफ स्पिनर बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के लिए थोड़ी सी मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन खुर्रम के खिलाफ इनको बड़ा संभल के करना होगा गेंद। ठीक है, केपी की इस टीम में आपको लेग स्पिनर नहीं मिलेगा। इनके पास तजुर्बा बहुत है, लेकिन देखिए ये आसिफ अफरीदी से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं। आज इफ्तिखार अहमद को उनसे पहले लाया गया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि पहली सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से T20 में किसने बनाई थी? मोइन खान। खुर्रम मंजूर भी थे उस मैच में, कप्तान थे मोइन खान। डेब्यू था T20 और उन्होंने उसमें सेंचुरी बनाई थी। कराची डॉल्फिन्स की तरफ से खेले थे। लाहौर में मैच हुआ था, लाहौर लायंस के अगेंस्ट। और पूछिए। जहाँ इफ्तिखार अहमद और खुर्रम मंजूर दोनों का ही बहुत तजुर्बा है, खासा वक्त इन्होंने गुजारा है क्रिकेट के मैदानों में। और इस बार बाल बचे। इस बार ये आम बॉल थी, ऑन साइड में खेलने के लिए गए। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद जो है बिल्कुल लेग स्टंप के पास से होती हुई गई है। तो क्रॉस बैट खेल रहे हैं, जगह बना के बॉल अंदर आता जा रहा है एंगल के साथ। थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। ये इफ्तिखार अहमद इनका अच्छा रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ। मोहम्मद हफीज के साथ इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है और
वही अंदाज अपनाते हैं बॉलिंग करते हुए, सफोकेट करते हैं राउंड का विकेट आकर बाएं हाथ के बैट्समैन को। अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन इन्होंने सर्व किए 41 पर 1। सबसे बड़ा ओवर पहला ही था, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता गया। विकेट गिरी शर्जील की। आसिफ अफरीदी दोनों तरफ से स्पिन अटैक। आपने पूछा पहली T20 सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से किसने बनाई थी? मोइन खान की हम बात कर रहे थे, नेशनल T20 की हम बात कर रहे हैं। दूसरी किसने बनाई है नेशनल T20? बॉल कर दिया आसिफ अफरीदी ने पहली गेंद पर। इस बार चलता किया, खासा परेशान दिखाई दे रहे थे पिछले ओवर में इफ्तिखार अहमद के सामने। और क्रिकेट के मैदान में ये होता है कि अगर एक बॉलर एक मिनट से अच्छी बॉलिंग करता है तो दबाव आता है, दूसरी तरफ से भी विकेट को दूसरा ले जाता है। तो स्पिन पर अपनी धाक नहीं बिठा सके शान मसूद। 13 रन बनाकर चले वापस 41 पे 2। कप्तान आए हैं बैटिंग पर। अच्छा टूर्नामेंट रहा है अभी तक सरफराज के लिए। ये सरफराज अहमद का ये टूर्नामेंट एज अ बैटर बहुत अच्छा रहा है। लास्ट 5 जो इनके स्कोर हैं T20s में 41, 42, 15, 51 और 13 रहे हैं। और 54 की एवरेज से इन्होंने 162 बनाए हैं। बाहर निकल के खेला और ये अपनी विकेट गिफ्ट कर दी। इसकी जरूरत थी नहीं। इसका सवाल तो बाद में उठेगा, लेकिन ये हुआ क्या? बाहर निकल के अटैक करने की कोशिश की और अब इनके जहन में आ रहा होगा कि ये अटेम्प्ट करना बनता नहीं था इस वक्त। जी हाँ, पिछली 27 गेंदों से एक भी बाउंड्री नहीं मिली थी और इसीलिए सरफराज अहमद ने जल्दी कोशिश की कि यहां चौका लगाया जाए। उनकी बदकिस्मती कि गेंद बल्ले पर आई नहीं। अच्छी फॉर्म में थे, इस बार कैच नहीं करा सके कप्तान। उन्होंने स्कोरर्स को जहमत नहीं दी। 41 पे 3। सऊद शकील नए बैटर आए हैं GFS सिंध के, लेकिन जो अभी हुआ है वो अभी तक समझ आया नहीं, समझ से बाहर है। बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी उम्दगी से उन्होंने अभी तक खेला है, अपनी इनिंग्स को बनाया है और मेन स्टे रहे हैं GFS सिंध के। और यहां पे आते ही उन्होंने दूसरी बॉल जो फेस की उसमें ये कर बैठे।
पचास से ऊपर की एवरेज से लास्ट 5 इनिंग्स खेलने वाला बैट्समैन ऐसे आ जाए। ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका है इसी ओवर में। इवन शान मसूद का, तारिक साहब, जो विकेट हमने देखा कि पीछे हटके क्रॉस द लाइन बैट को इस तरह हॉरिजॉन्टल ला रहे थे, खेल रहे थे, कुछ अनकंफर्टेबल से थे। और जैसे आसिफ आफरीदी है कि बॉल स्किड हुई है, नया ही बॉल है, सीधा जाके मिडिल स्टंप पे लग गई। यहाँ बैटिंग रिदम जो है उस सिंध ने खो दिया है शर्जील खान के आउट होने के बाद से। इस ओवर में भी अभी तक सिर्फ 2 ही रन्स बन सके, लेकिन सऊद शकील से बड़ी उम्मीदें हैं। तो उस सवाल का जवाब था आपके कि वो खुर्रम मंजूर थे, मोइन खान के बाद दूसरे बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी नेशनल T20 कप की दूसरी, 44 पे 3। Eighth over from Asif Afridi. 2 for 2. And the spinners coming on, and the innings almost has come to a halt. Asif Afridi made sure that he was gripping the ball properly. Quick delivery, short into the pads. You miss, I hit. Shan Masood walks. Thank you. Trying to use the pace, just a single, but it's Iftikhar also not gone for any sort of runs, and the whole dimension of the game has changed. Yeah, the slower you ball in the air, the more difficult it is for the batsman, particularly this innings, it seems that way. But this is the same pitch where 2 teams just got in excess of 200 Bazid. So with Anwar Ali and Danish Aziz to come, and you still got hope. Just to ponder what has happened, Tapalti moment. That rollicking start for Sharjeel, and then now Iftikhar also doing his bit. The spinners, this is the 3rd over of spin, and they haven't gone for a boundary yet. Pondering is also Sarfaraz, how they lost those 3 wickets. 50 for 3. Ifeel darasha kana mala vilsha yaar taqbala mujhe Iftikhar 2 overs for 9. Asif Afridi 1 over. 2 for 3. And what Asif Afridi does really well is attack the stumps. He goes very straight, be it a left-hander or a right-hander. He's always getting the ball to drift back into the stumps. That is also off middle stump. So
If you want to get after him, you have to take a risk. Absolutely. I mean, there are runs available in this wicket, but against the spinners, maybe not so much. And he's a clever bowler. Subtle changes of pace, but the ability to keep it within the stumps and be so accurate is why he's so successful in the shorter format. Beautifully bowled. Just you could see there, slowed it up, mixing it up. And Rizwan, such a clever captain. He saw that the fast bowlers were going to the cleaners and the ball was coming nicely on the bat. You could cut, pull, drive on the up. So he's using the spinners more often and slowing the ball up. And again, into the stumps, quicker, straighter. Still no boundary, again spin. That's a good shot. It's going towards the boundary, but it has, and it's 4 runs. Nicely played to the mid-wicket boundary. And not great fielding. That's not great for the spinner. Stretched out for that sweep shot, and Musaddiq overran it. Everybody's done that in the field. It's pretty embarrassing. Asif Afridi, well, rightly not impressed. He's not had a great tournament in the field. Ends with a dot, so 10 done, it's 56 for 3. Going to North America, UK and Europe, but if you're looking to stream this game, go to PCB YouTube channel. It's high quality, and PCB Facebook page as well. Crisp pictures for this game, high definition. And also you can create an account at shop.pcb.com.pk, and there's a chance that you might win a Pakistan 2021 t-shirt of the World Cup. Back to pace. Arshad Iqbal, 1 over 1 wicket. So short of a length, beautiful looking shot. Has that hit the gap? You bet it has. Classy boundary. Yeah, brilliant attempt by Afridi to save that boundary, but to no avail. Nicely hit. Slightly short of length in his arc. So Shakil played it beautifully. Nice timing. Everything right about that shot. Great balance and 4 runs. Better bowling this time, slightly more pitched up. Bowlers must be getting some, they must have gotten some idea from the previous game, the fast bowlers also, what to do, where to bowl. You know, bowl a few cutters, slower balls from the back of the hand. Just be nice and clever. Arshad Iqbal normally just hits back of a length. His natural length is short of a length. Slow one again, mixing it up, and that's gone off the surface. It's actually turned off the surface. Yeah, that was nicely bowled. Fingers rolled
across the ball. Goes to Rizwan on the bounce, and that's the kind of bowling the skipper is looking from his bowlers, the fast bowlers. You just have to be, you have to think out of the box when you're bowling on a flat surface like this, where 200 runs have been scored in the previous match rather. And again, the pace off the ball. Now, for this second game, obviously, GFS Sindh would have watched that first game, and 200 was chased down easily. And it's easy to be sucked into that and think, yes, we can get 200 as well. You need to stay in the moment. Yes, you're 60 for 3, but what can you get out of the game from here? You want to be 175 plus. You want to get that so that you're in the game. You want to stay in the game. Right now, there's a danger that you might just, if you lose a couple of wickets here, you might just quietly sort of surrender. But you need to, Khurram Manzoor and Saud Shakil need a partnership. Yeah, you can't lose the plot by thinking too far ahead. They still got close to 10 overs. The run rate, of course, is not, great at the moment, under 6 runs, but they can with players like Anwar Ali to come and back, and Khurram Manzoor still on the crease, and Shakil also here. You can think about getting 160, 170. Yeah, it seems as if the bat's broken. It's just, I think it's just a mark. Short ball, there'll be a couple of runs maybe. Yeah, no. Well defended at the fence by Wasim. It's 11 gone, 63 for 3. Still trying to decipher what that mark is. Looks like it's completely broken, but tell you it isn't. Latches on to that sweep shot. He made sure that he hit the gap. That's a good shot because of the awareness of the field. Yeah, that was well played. They needed to break the shackles. They still haven't completely broken them. The noose is still really tight around their necks, but this is a good shot to sort of release the pressure. Well played. Goes again. This one will also hit the gap. Back-to-back boundaries. Yeah, that's more like it. If you want 160, 170, that's more like it. Attack the bad balls, take a bit of risk. And, fortune does favor the brave. Be a little brave, and that's what he's done. There's one not happy with the bowler. One. So 9 of the first 3. If Khurram Manzoor can add another boundary to this, it'll be that big over. You look at those 20 overs and break it down now. You've got 9 overs remaining. You want at least 2 of them, if not 3, to be really big.
Yeah, if I were the Sindh captain, I would promote Bazid, I would promote Anwar Ali up the order and take that kind of risk, a little bit of out of the box thinking. He's prowling, he's there. 1-1-1. And very full, so not the opportunity to get underneath that. Khurram Manzoor looking for that boundary option, but just too much skill. Anwar Ali's been in fantastic hitting form. Power hitters, they play high-risk cricket, and there's sometimes a patch where everything goes, and I think he's in that patch of form where everything is going out of the park. Like the chairs, he's also got a purple patch going. One. Aram sir. Backup okay, yeah. Imi backup imi. Single to end the 12th. It's 74 for 3. चौहत्तर पे 3 12 ओवर्स के बाद जो सेटबैक सा हुआ है, जो 3 विकेट्स गिरे एक के बाद दीगरे, एक के ओवर में 2 आसिफ आफरीदी की, और उसके बाद उससे पहले इफ्तिखार ने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया। वो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील कर बैठा है सिंध के लिए। अब यहां इनको किसी हद तक जरूरत है सऊद शकील जैसे बैटर की, जो लंबी इनिंग्स खेले। बाबर आजम ने शुरू में कोई बड़े शॉट्स नहीं लगाए थे, फॉर्म किया था, और खुर्रम मंजूर जब मौजूद हैं तो उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है टीम की। तो अभी भी जैसे कहते हैं ना मरीना, ऑल नॉट लॉस्ट। विकेट अच्छा है, बैटिंग भी है, खुर्रम मंजूर को खेलना पड़ेगा आखिर तक। रन्स मिल रहे हैं, शॉट्स लग भी रही हैं। अच्छा आगाज मिल गया था सिंध को, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी बैटिंग में और भी काफी ऐसे नाम हैं जो आके हिटिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा अब। आइए देखते हैं जो 3 खिलाड़ी आउट हुए। सबसे पहले इफ्तिखार ने आउट किया, इनसे पहले अरशद खान ने आउट किया था शर्जील को। ये पहली विकेट थी जिसमें थोड़ा सा हैरान थे। फिर ये शान मसूद लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट जो है थोड़ा सा परेशान थे, और लेफ्ट आर्म स्पिन ने तो बिल्कुल ही अनडन कर दिया। इसका मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ब्रेन फेड हुआ, बाहर आए दूसरी बॉल पे और अटैक करने लगे। हमें देखने को मिला था पहले मैच में भी कि शॉट्स लग रही हैं, लेकिन जबरदस्ती की शॉट्स फिर भी नहीं लगेंगी। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और सरफराज ने तकरीबन 170 के हदफ का तयन किया था, थोड़ा सा लो भी रहा है, और फिर फोर्स की ये शॉट विद लाइन नहीं गए सऊद शकील। यहाँ बॉल को थोड़ा सा छोड़ के कराया मोहम्मद वसीम जूनियर ने, जो कहते हैं ना विप करते हैं रिस्क को, वो नहीं किया। एक बार फिर वही चीज। अभी हमने दानिश अजीज को देखा, इससे पहले अनवर अली को देखा। ये वो 2 बैटर्स हैं सिंध के जो अभी इनका काम नहीं है। इनको आप दें 15 ओवर तक के बाद का, फिर ये आखिरी 30 गेंदों को खेल के बताएंगे कि इनमें क्या है। अभी तो रोमान रईस भी पैड पहने हुए हैं, और शान मसूद जो है वो उतारने के इनकार कर रहे हैं पैड्स को। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म बनाना होता है वो उसकी जरूरत है अभी 15-16 ओवर उसके बाद। फरहान बाउंड्री पे मौजूद थे, लेकिन मिस फील्ड की वजह से 2 रन बना पाए। खुर्रम मंजूर
जानते हैं कि बड़ी हिट्स मार सकते हैं, जरा फील्डिंग देखते हैं। अच्छी स्लाइड थी लेकिन बॉल को क्लीनली नहीं पिक कर पाए। अच्छा कमबैक किया केपी ने। जिस तरह का स्टार्ट हुआ था पहले 2 ओवरों में, सरजील ने जिस तरह की बैटिंग स्टार्ट की थी, लग रहा था कि 170 के पार ही जाएंगे, लेकिन अच्छा कमबैक केपी का। रिजवान ने भी अच्छे बॉलर्स ऑपरेट किए अभी तक। स्मार्ट बॉलिंग, बैट्समैन रूम बना रहा था, गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा। 79 for 3। आसिफ आफरीदी के उस पहले ओवर ने ही तहलका मचा दिया, 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब 15 ओवर या 15 रन फी ओवर बनाएंगे तो 170 पे जाएंगे। ये अब जो बड़े शॉट्स लगाने वाला प्लान है यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा खुर्रम मंजूर को। डगआउट की तरफ एक नजर डालें, देखें अनवर अली है, दानिश अजीज है, तो जरूरी है क्योंकि अभी 16 बनाए उन्होंने 20 गेंदों पे। अब तक तो आंख सेट हो जानी चाहिए। अरशद इकबाल आएंगे। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छी और अच्छा स्टॉप भी किया। अच्छी क्रिकेट ऑलराउंड। सऊद को मिल गई थी लेंथ और कड़ाकेदार आवाज आई थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग की बदौलत ये चौका रोकने में कामयाब हुए और इफ्तिखार मौजूद थे बाउंड्री पे। अरशद इकबाल बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, अपनी बहुत जिसे कहते हैं ना कि अपनी एबिलिटी को समझते हैं और बड़े अच्छी गेंद करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा लगता है कि पिच को बड़ा समझ के बॉल करते हैं। आप देखें कितना हाइट पे बॉल आता है, कमर से ऊपर मारना मुश्किल होता है, स्लॉट में कुछ नहीं देते, रिस्ट ला के मारते हैं और उसी वजह से अच्छा बाउंस भी इनको मिल जाता है। लगता है सिकंदर को मैसेज आया है क्योंकि अब एकदम जो इंटेंशन है शकील और खुर्रम मंजूर की चेंज हुई है। इनको शिफ्ट करना पड़ेगा गियर। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क ले, ऐसे ही बल्ला घुमाने का और बड़े शॉट्स की तलाश करने में फायदा होगा नहीं, विकेट गिर सकता है। ये फुलर लेंथ है, इसको जोर से खेला और यहां 4 हासिल होंगे। ये है वो बॉल जिसको पनिश करना जरूरी है और इसका अंदाजा है अरशद को कि ओवर पिच कर बैठे हैं। इस बार चूक गए अरशद इकबाल। अभी तारीफ हो रही थी कि अच्छी लेंथ हिट करते हैं, लेकिन आगे गिरा दिया था बॉल और ये एक फ्री हिट थी। अपनी टांग को क्लियर किया और ऐसे मौके नहीं छोड़ते खुर्रम मंजूर। शानदार शॉट। एक आध ऐसा शॉट लग जाए बैट्समैन से तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दिल बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा वेट किया, गैप में खेल दिया 4 रन के लिए। इतना शॉर्ट नहीं था बॉल, लेकिन थोड़ा तैयार थे, बैकफुट पर ज्यादा वेट था खुर्रम मंजूर का और उन्होंने बड़ी उम्दगी से खेला। 2 चौके लगातार, थोड़ा सा डीप गए थे क्रीज में और शॉट इतनी तेज थी कि 2 फील्डर्स को बीट कर गई। कोई मौका नहीं मिला इन्हें। फिंगल्स रोल किए थे, लेकिन खुर्रम मंजूर जिस तरह की बैटिंग अप कर रहे हैं, थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा अरशद इकबाल को।
फिर से डीप गए क्रीज में और रन के लिए कमिट कर लिया था सऊद शकील ने। लेट निकले थे खुर्रम मंजूर और पॉइंट पे जहां तक मेरा ख्याल है फरहान मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान। उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया रन आउट। देखिए रुक के निकले थे, उन्होंने बिल्कुल भी थ्रो करनी मुनासिब नहीं समझी, हालांकि बैकअप भी मौजूद था। बस वो कभी कभार ऐसा होता है कि जहन काम नहीं कर रहा होता है, इंसान सोचता है मैं यहाँ मारूं वहां मारूं ना मारूं। ये रिफ्लेक्स थोड़ा सा जरूरी है। उसूलन तो उनको नॉन स्ट्राइकर पे ही अटैक करना था क्योंकि बैकफुट पे थे खुर्रम जब ये शॉट खेला है, उनको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। सऊद दौड़ पड़े थे पहले ही। ऊंचा शॉट खेल दिया है लेकिन गैप में गिरेगा जाके। रुक जाओ ओवर मुकम्मल हो गया और सिंगल के साथ 90, 3 खिलाड़ी आउट। छह ओवर बाकी यानी 36 गेंदें। ये वो रन आउट का अपॉर्चुनिटी थी जहां उनको समझ आया नहीं। आई डोंट नो अगर अरशद इकबाल अपने फॉलो थ्रू में सामने थे। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर वही फुलर लेंथ। मोहम्मद वसीम जूनियर इस बार चूके थ्रू द लाइन खेला इस बॉल को, बहुत ही शानदार शॉट। 50 की पार्टनरशिप मुकम्मल। सिग्नेचर शॉट है ये शकील का। सऊद शकील ताक में रहते हैं कि विकेट मिल जाए। इस बार फिर स्लोअर बॉल अटेम्प्ट की थी लेकिन आर्म्स फ्री करने का मौका मिल गया था। ये देखें ऑन दी अप, शानदार शॉट 4 रन के लिए। अब जरा जोर लगाना शुरू किया जीएफएस सिंध के जो बैटर्स हैं बाहर। 25 बनाए 24 गेंदों पर मंजूर ने, 30 बनाए हैं 22 पर सऊद शकील ने। रुक जाओ। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हिसाब से अगर ऐसे ही खेले तो 132 है स्कोर, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन 10 रन फी ओवर या 12 रन फी ओवर पे 160 के करीब पहुंच जाएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर। ये भी शायद जरा मुश्किल होगा। यहाँ थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा सिंध को अपने बॉलर्स को। थिक आउटसाइड एज, प्रोटेक्शन है डीप में। थोड़ा सा और स्ट्रेट खेलना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर की जानिब भी ये शॉट दोबारा खेलना चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। ये पार्टनरशिप फिलहाल सऊद शकील की कंट्रीब्यूशन 31 और खुर्रम मंजूर 25। अच्छी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है ये, लेकिन अब यहाँ पे रुक नहीं सकते। 23 खुर्रम मंजूर के इसमें कंट्रीब्यूशन है, अब रुकना नहीं है इनको। जोर से खेला है, जैसे आप गालिबन बॉल को थप्पड़ मार रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बैट पीछे हटके, इसमें टेक्स्ट बुक लाइक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी कुछ चीज है जिसका नाम है टपाल दानेदार। बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट होता है कि मैं अपनी फेवरेट चाय पीऊं, हंसूं या क्या करूं, सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। ये आपके थोड़े एक्टिंग स्किल्स भी टेस्ट होते हैं। फील्डर्स को ढूंढ रहे हैं इस वक्त दोनों बैटर्स, कोशिश तो कर रहे हैं, पेस नहीं मिल रही। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं केपी के बॉलर्स। थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं सऊद शकील और खुर्रम मंजूर दोनों। हर बॉल पे डीप जा रहे हैं क्रीज में।
कहीं ना कहीं बॉलर्स ये चीज़ नोट ज़रूर करते हैं, जहां T20 फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में आप प्रिडिक्टेबल हो गए, वहां पे आप बाजी हार जाते हैं। फुल बॉल, पहले सीधा, उसके बाद बैट का फेस ओपन करने की कोशिश। 97 पे 3। आप तेज घूम रहे हो हैं? नहीं, सारे स्लो बॉल कह रहे हैं। वही करना। पावर प्ले में जो एक विकेट गिरी, उसके बाद जो झटका लगाया आसिफ आफरीदी के ओवर में ही 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, वहां से रिकवरी मोड अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। ऊंचा शॉट, अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा कवर, सर्कल के पास, आउट सऊद शकील। ये नहीं पता कि ये सिंध के लिए बेहतरी में हुआ है या नहीं, लेकिन खिलाड़ी एक और आउट हो गया। इमरान खान सीनियर ने आते ही पहली बॉल पे विकेट ली। सऊद शकील एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, दूर हो गए और थोड़ा सा अर्ली भी खेल दिया। सॉफ्ट डिसमिसल था ये और नुकसान उठाना पड़ेगा सिंध को। चौथी विकेट उनकी गिर गई है। सऊद शकील 32 रन बना के वापस। सिंध 97 for 4। मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करेंगे सरफराज। यहां दानिश अजीज आए हैं जो उनका रेगुलर नंबर है। पावर हिटिंग के हिसाब से अब तक जो है वो ज्यादा कारआमद साबित हुए हैं अनवर अली। दानिश अजीज 72 नॉट आउट इनका जो है टोटल, और ये इसी टीम के अगेंस्ट था, इसी ग्राउंड पर पिछले नेशनल T20 में, जिन्होंने आखिरी ओवर में 19 रन बनाए थे और इफ्तिखार का वो ओवर था, मैच जितवाया था। लीडिंग एज और आउट लग रहा था, स्क्वायर अप हो गए और ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। दानिश अजीज भी डग आउट के लिए वापस। 2 में 2 इमरान खान सीनियर 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए और सिंध इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। ऑन साइड पे इसको क्लिप करना चाह रहे थे, टॉप एज लगा, लीडिंग एज, और सायदा फरहान ने कोई गलती नहीं की। लगता है कि सिंध अपना जो प्लॉट है वो लॉस्ट कर चुका है इस वक्त। बिल्कुल उनकी समझ से बाहर है कि क्या किया जाए। कोई रन बनाए बगैर, स्कोरर को टेंशन दिए बगैर सिंध की एक और विकेट डाउन। 97 पे 5।
97 पे 5 अनवर अली आए हैं नए बैटर और आए हैं 2 विकेट्स गिरने के बाद। सऊद शकील पहले गए, रूम बना के खेलना चाहते थे और उसके बाद ये बल्ले का फेस क्लोज किया, बैकवर्ड पॉइंट पे कैच आउट हो गए। 2 खिलाड़ी एक ही ओवर में। कभी कभार ऐसा होता है, इंग्लिश में एक फ्रेज है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है कि ये रास्ता बनना हो अनवर अली के लिए और कुछ बड़ी हिट्स मिल जाएं जीएफएस सिंध को। हैट्रिक पर हैं इमरान खान सीनियर। एज और उंगलियां जरूर लगी थी स्लिप में, लेकिन गेंद निकल गई हाथ से। शाहीन शाह अफरीदी थे स्लिप पर मौजूद, अपने कद का फायदा भी नहीं उठा सके। गेंद बहुत तेजी से उनके पास गई थी, सनसनी मच गई थी और तकरीबन अपनी हैट्रिक पूरी कर ही ली थी। और जैसे कि आपने कहा, इनसे लंबा कोई बंदा इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन बदकिस्मत रहे। परफेक्ट डिलीवरी थी, एज भी मिल गया था। बैक फुट पे जाके खेलने की कोशिश की थी और हाथ लग भी गया था, लेकिन काबू में नहीं रख पाए। किस्मत ने साथ दिया अनवर अली का। और हाँ, ऐसा ही होता है जब अपॉर्चुनिटी थी अपने टीममेट की हैट्रिक करवाने की। बहुत ही अच्छा ओवर जारी इस वक्त इमरान खान सीनियर का। खुर्रम मंजूर स्ट्राइक पर, 2 रन की कॉल है, दोनों ही तेज हैं विकेट्स के बीच में और दौड़ पड़े हैं दूसरे रन के लिए। थ्रो इतना फ्लैट नहीं, आसानी से कंप्लीट कर लिया। 3 रन बन पाए इस ओवर में और 2 विकेटें और तकरीबन हैट्रिक होते होते रह गई है। इमरान खान सीनियर को जो किरदार दिया जाता है बखूबी निभा रहे हैं। जब भी इनको बॉलिंग दी जाती है, जिस भी सिनेरियो पे दें, पूरे उतरते हैं। सिंध ने 100 रन मुकम्मल तो कर लिए हैं, लेकिन अब इससे आगे का सफर आसान नहीं है इनके लिए। ये वो कैच है, एज के लिए शायद शाहीन शाह अफरीदी को खड़ा किया था और मायूसी झलक रही है दोनों के चेहरों पे। एक बॉलर को ही दूसरे बॉलर की तकलीफ का अंदाजा होता है, तो शाहीन को पता है कि उन्होंने क्या मिस किया है। यहाँ जो डाइव उन्होंने लगाई थी, ऐसे कैच चिपक ही जाते हैं आपके हाथ, बस वहां तक पहुंच नहीं पाए। उंगलियां लगी लेकिन गेंद तेज था। एफर्ट पूरी दी है, इसलिए कोई खास ब्लेम आप नहीं कर सकते। बस किस्मत में नहीं था उनके। इमरान खान अपनी हैट्रिक पूरी करते, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त ओवर रहा है। सिर्फ 4 रन दिए, 1 गेंद बकाया है अभी। बड़े अच्छे फिगर्स, 2 आउट करके 20 रन ही दिए हैं। 1 गेंद बाकी है इनके कोटा पूरा होने में 4 ओवर्स के। और ऊंचा शॉट खेल दिया अनवर अली ने, ये रहेगा तो सेफ जोन में, लेकिन कुछ बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा। चौके के साथ ओवर का अख्तिताम। 100 रन मुकम्मल जीएफएस सिंध के, 105, 5 खिलाड़ी आउट। So 4 overs to go now, 105 for 5. Anwar's just faced a couple of balls. Manzoor not out 29 at this stage. It's really been a bit of a mixed bag, this. They started off quickly. Shahjoor was playing nicely, then he fell. Then runs dried up dramatically. Then there's been a bit of a spurt. Then wickets started to fall. And now they're in trouble, really. They've got to go some because they're only going at 6.5 runs per over, and then this fella's back. And he's got 2 overs to go. You know, it does look like that Sharjeel was batting on a different surface than the rest of the Sindh batters. Stumping of the captain, he was out by about 3 yards. Oh, that's clever. That's very clever. First ball whipped away, and that's gone for 4. Welcome back to the crease, Shaheen. And Khurram Manzoor
He has been struggling to find the boundary this time. A lot of good innovation there. He was off balance but got the treatment. But this time it's Imran Khan Senior with the misfield. It was Shaheen Afridi dropping the catch on his bowling. And now it's his turn. I wonder, can they get to 150? That means going at about 11 and over. Slower ball, clever start from Afridi. Outfoxed with the second ball, couldn't use the pace. And Khurram Manzoor has struggled to hit it straight down the ground, so trying to go for the lap sweep again. A very good change of pace, back of the hand from Shaheen Shah Afridi. These guys spend so much time at that back of the hand one. They spend so much time to actually get it to a stage where they're confident enough to bowl in a match, let alone confident enough to bowl it really well in a match. And whenever we see it these days, it's a really good delivery. And so effective when it is bowled nicely. That's the top edge. He was moved up. That's gone for 4. Second boundary so far in the over. There was a change in field for this delivery. The third man came in, fine went back, but Shaheen Afridi went outside off. Again, back of the hand, slow one, and Khurram Manzoor knew exactly where the fielder was. Wonder why he did it again. One before that was so good. I guess there was no pace on the balls. That's why he wanted that third man up. That was his plan, to bowl that slow one again. There's a fine leg back, as Sana said. I don't think he's going to opt for that slower ball at the back of the hand again. That's going to disappear very quickly for 4. So this is the big over they wanted. This is going to get to 150, I'm sure. You're spot on. He wanted to go for that Yorker down the leg side. There were 2 fielders there at the boundary on leg side, but this shot bisected both of them. There was a bit of collision there. Just a brush. Contact. Holding their ground. Boys will be boys. So there's still 2 balls to go. 12 off the over. Oh, there's the quick. Rare sight, watching Shahnawaz Dhani bat. Oh, it's cracked back. That is a wonderful shot. That is magnificent. Right out of the middle. What an over this is. Big over. Big over from Khurram Manzoor against Shaheen Afridi. 4 fours. This time, he tried the shorter ball, but Khurram Manzoor was as good as he played with the Yorker. That went very quickly. Great strength behind that and timing. He doesn't look too charmed with that. So 4 fours out of 5 balls in this over, 16 from it, 1 ball remaining. Now third man and fine leg are back, so that means pace on. Mid off and mid on up. And he's cracked that pass. Mid on for 4 more. Beautiful stuff. That is magnificent work. 5 fours in the over, 4 fours in a row. He is steaming away from the center of the pitch. He's gone 20 off, 17 overs gone, 125 for 5. We've just found the skyscraper in this innings. Took a while, there's a few satellite dishes around, and that's why it was checked. But what about these boundaries in that last over? It's taken to 49, by the way. 5 boundaries in no time. 1. Over the top of short third man. That was a great shot. And the final one. And Khurram Manzoor, before that over of Shaheen Afridi, was 29 of 28 and finished the over with 49 of 34.
So the run rate's now gone to 7.35 from here. That's what it's climbed to. 3 overs to go. They've got to keep going. He won't mind a bit of a bash either. Anwar Ali. Again, on strike, Khurram Manzoor. And this should definitely make the captain and the coach happy, because he's recovered this. He's made some recovery for the team. Current partnership 29 of 11. Well, he just needs another really good over, and they're going to be looking at the 160 actually. Wonder if he can do it. 49 at the moment. Oh, it's leg side. Did he make his ground running through? Quick out of the blocks. They're going to send it upstairs for a look. It was backing up beautifully. Anwar Ali, I think he's reasonably comfortable at this stage. Good stuff from Mohammad Rizwan also, but as you said, he was backing up really well. Anwar Ali really wanted to be on strike. Was clear that he wanted that single. Very good running. Really good support from your partner. All these runs are so important. $50 up. Must have been some connection with the willow. Thought it was a leg by, but there must have been some connection with the willow somewhere. Rattled around. 50 up. Really well played. 35 balls. What a spurt late in the innings. Right, Anwar Ali. He likes to cut loose. We tried to hit that one too hard, I think. Okay. 4 fielders on the leg side at the boundary for Anwar Ali. Long on comes in for Khurram Manzoor. And he's dropping back again. So we've only got fine leg back and also long on back. Third man's up and also mid off. And he bowls outside off stump, and that's gone for 4. That's where he shouldn't have bowled. Very good batting there by Khurram Manzoor. He exactly knows he's playing with the field. And at this time, he's watching the ball really well. He's bowled outside off stump with third man in, and all the fielders on the leg side at the boundary. Not the best of deliveries and at that. You can't bowl that line or that length with that field he's got. Now he's got the same field. There's been no change. So he's got to bowl straight. He's got to bowl pace delivery, and he's got to bowl the pads, really. Up goes the finger, so he gets the reward in the end. So that was pretty well done. An important wicket. That's just changed things a little bit in the middle. It's just altered some momentum. Another change of pace. We have been talking about these variations, how important they are. Mohammad Wasim Jr. with a cutter right in front of the stumps. Big wicket of Khurram Manzoor. Yeah, that's a huge wicket. That's the one they needed. He was the man that was getting the ball to fly all over the place. A strike rate of 146. He's got to start that trek back. 54 off 37. He played beautifully, particularly the last 10 minutes. 132 for 6 now.
Maurice is the next man that's come in. 1 ball left in the over. 1 to finish over number 18. Full toss, leg side. Scamper through for 1. That's a good over. Just 8 from it. That's fine. Just the 1 boundary. Also an important wicket. 133 for 6. Missing part of that batting card is the captain, Sarfaraz. 40 odd in no time in the last 2 games, actually. Just a couple of balls and stumped by a mile today. Manzoor was the last dismissed, and he's been the pick of them. So they've still got some work to do with these last 2 overs. That's not a good total at this stage. 133 for 6. The best part about KP's bowling, just 1 extra up till now. Freedy. Oh, what a shot. Over the top. Outfield's quick. Nicely tracked. Couple more. Roman Reis doesn't look like a tail ender. And Shaheen Afridi at the receiving end again. He has been expensive. 42 of 3.1 overs. Yeah, that's far too expensive for someone of his ability. There's a look at the dismissal again. It didn't take long to go up. It was the correct decision. Good aggression. Good pace. That's the kind of bowling he needs to do. 144 kilometers per hour. Testing Roman Reis with a shorter one. Got the fielders right. Third man back. There's a point. Deep square. Mid off in the circle. Yeah, on the line he's bowling, you're right. That third man is the right man. If he bowls a bit straighter, then finding inside the circle might be a little bit of a test. That's good. Sliding across him. Yes, you don't want to bowl into the arc of these big hitters. That's all they're here to do. Want to swing their bat. But here, with this pace and this length, they can't do much. Uncomfortable Roman Reis in front of Shaheen Afridi. And it's a replay. 3 dot balls in a row. That is superb stuff at this time. And this one has been signaled by the umpire for 1 for the over. Just look at that. Tried to get in that position. Was a bit low on this occasion. Freddie's got such a strong wrist. It's amazing the strength in his wrist to bowl this sort of pace. Skipper's having a close look at proceedings. 2 balls left in this over. Full down the ground. Not quite out of the middle. Still 4 runs though. That's important. That's valuable. And go back over the top of the bowl or over the top of a standard mid-off position. And he's going for that big Yorker. Didn't quite get it in the hole. So 6 off the over, 1 ball to go. So far it's okay. If this one doesn't go for a boundary, it'll be fine. The call is for 2. Touch and turn. They're off. And coming back for the second, that is really good running. Both of them out of the blocks quickly and gone. 8 off the over. 1 over remaining now. 141 for 6.
Not too much left in the batting stakes after these guys. So they will hope that there'll be at least one bound in this last over, and they'll hope they'll get the 150 mark. That'll be their thought process, try and get 9 off this last one. From Wasim. Oh, it's very nicely bowled. Right in the block hole. That is perfect. Excellent bowling there. Just look at that. Perfect Yorker right in front of the stumps. Did well to get a bat on that. What's really been impressive about KP bowlers is that extra column. There is only one extra, and that is also a leg by. To get underneath it. Can't do it. Straight extra cover, no run. So his setup is deep. He's annoyed with himself, Anwar Ali, getting as deep as he possibly can in the crease to try and get underneath the ball. That's what he wants to do. You'll see as the bowler runs in, he'll take a big step back, as a lot of the guys do these days. Low full toss. Just the single. KP, are we happy with that? Very good bowling, very good plan for Anwar Ali. They've got 4 fielders on the leg side. Just look at that. A low stance, uses the crease a lot, and yet he's able to deliver that Yorker. Excellent bowling, excellent implementation by KP. His economy is really good. It seems going at just 6 and over. Captain knows there's going to be a challenge on here. Rushed him. High but safe. And only one. Good comeback there by KP. This match has been a roller coaster. Good start by Shajil, then the run rate went down, then we saw a few big overs, and again KP pulling it back. Khyber Pakhtunkhwa doing a very good job. Yeah, I think they've done an outstanding job on the surface. It's a very good batting track, this. Eased on the onside. Fielder tracks that. Coming back for the second. And they don't make it. He's going to be out. So it's just going to be the one run. It's going to go upstairs for a look, but I think it's only the one. Reyes is walking away at the moment, actually, as we have a look at the replay. That's out. Roman Reyes has to walk back after making 10 runs. He's gone for 10. Run out by Adil Amin. Sindh 144 for 7. Last ball of the innings. It's not a particularly challenging total. They'll need to get wickets nice and early. Has that gone out of the ground? It has. So 6 runs to finish. He's disappointed with that. It was a really good over up until then. Picked up a wicket. Last ball's travelled. Umpire wants to just do a double check, and better to be safe than sorry. Very good shot. Again, using the depth of the crease and clearing that front leg. Just look at that. Looks like the maximum here by Anwar Ali. Great finish from him. Yep, there's confirmation. The relay coming down to the man in the middle. Signal for 6.
So they do get to that 150 mark. But KP were really pleased, I think. Considering the surface, considering the pitch, their bowling was really good, I think, and they were chasing leather in the first 4 overs. Then suddenly they got a wicket, and then they slowed things down. Runs didn't come, and then it was a little bit of an effort, I suppose, from that moment. We had to wait for Manzoor to have a bit of a thrash before he got to 50, only to get to 54 in the end of 37. Shakil 32 off 26, Shajil 25 off 20. But 150 for 7 off their 20 overs shouldn't be enough, but as I said, you never know. Wickets early can certainly make the dugout get a little bit edgy. Okay, let's go downstairs to Sikandar. खुरम ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इतना खुश नहीं होगी टीम 150 इस पिच पर आपको लगता है काफ़ी हैं या कहेंगे कि जिस हालात में थे तो चांस लेंगे? नहीं ऑनेस्टली बात की जाए तो रन थोड़े से कम है, मगर देखें क्रिकेट है और ये कभी भी किसी की नहीं हुई। जैसे हमारे ऊपर तले विकेटें गिरती चली गई तो ऐसा हो सकता है हम रिजवान को जल्द पकड़ें, क्योंकि रिजवान जिस तरह फॉर्म में खेल रहा है तो अगर हम उसको पकड़ते हैं तो हो सकता है इंशाल्लाह हम रिजल्ट अच्छा दें। क्योंकि देखें ऑनेस्टली बात करनी चाहिए, रन थोड़े कम है मगर सिचुएशन वाइज अच्छे हमने इन दी एंड अच्छा टोटल कर लिया। तो इसको डिफेंड हम फील्डिंग वाइज और अच्छी अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह अचीवेबल है। अपनी इनिंग्स के बारे में बताएं। इनिशियली ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ बैठ के कि सही तरह बॉल आ नहीं रहा बल्ले पे, क्या चेंजेस किए आपने अपने खुद की टेक्निक में जिससे आपने अपना स्कोर बनाया आज इतना शानदार? नहीं ऐसा है कि बॉल थोड़ा लो रह रहा था और ग्रिप कर रहा था बॉल, इतना बैट पे इतना इजीली टू बैट से मीट नहीं हो रहा था। मगर प्लेयर वही है, प्रोफेशनल वही है, जो भी कंडीशन मिले जो भी सिचुएशन मिले। और सबसे बड़ी बात मैं लाइफ में पहली दफ़ा नंबर 3 खेल रहा हूँ, इतनी ईजी नहीं है मगर बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे मैनेज करना है, कोशिश किया, उसमें अल्लाह ने मदद की। स्पिन कुछ करेगा यहाँ? और अगर स्टंप्स में बॉल हुई और वेरिएशन का इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली होगा। चलिए 151 का टारगेट दिया है आपने, गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू। He played nicely, did play nicely, that's for sure. Right, so there's a look at KP's bowling. And at the top, Shaheen was a bit expensive today, but it was Imran Khan Senior with 2 wickets. Even with 2 drop catches, his bowling figures look really, really good. And another pick of the ball is Iftikhar with just an economy of 4.50. But overall, what's really impressive about KP's bowling unit, 1 extras, the lowest number of extras for this tournament. That has been extremely impressive. Yeah, that's outstanding, really is. Okay, what have we got? How many runs per over? 151 runs they need. They need to go at just over 7.5 runs per over.
जीएफएस सिंध ने 150 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। आज पहले बैटिंग करते हुए खुर्रम मंजूर ने अपनी टीम को संभाला दिया और शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। एक मरहले पर 41 पर 3 विकेटें गिर गई थीं। खुर्रम और सऊद इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। ये सिंध की इनिंग्स की चंद झलकियां हैं। शर्जील इनिंग्स ओपन करने के लिए आए थे। विकेट के दोनों जानिब खासे मजबूत लगे और एक अच्छी इनिंग्स की बुनियाद वो डाल चुके थे। देखिए अच्छे स्ट्रोक्स बैकफुट पर लगाते हुए नजर आए। सामने भी उन्हें जहां जहां स्मैश करने का मौका मिला वो बाज नहीं आए और फिर ये विकेट कीपर की अपील के बगैर ही उन्हें आउट करार दिया गया। इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके बाद शान मसूद बोल्ड हो गए। आसिफ अफरीदी के पहले ही ओवर में, इस ओवर में आसिफ ने 2 विकेटें हासिल की। ये बड़ी विकेट थी, ये बड़ा लम्हा था इस मैच में। कप्तान सरफराज अहमद स्टंप आउट हुए और फिर ये 56 रन की पार्टनरशिप हुई। दाएं और बाएं बाजू के बैटर्स के दरमियान सऊद शकील ने एक और अच्छी इनिंग्स खेली। स्पिनर के खिलाफ हमेशा से वो अपने आप को मनवाते आए हैं। तो ये माने हुए बैट्समैन है, पहले सीजन से खेल रहे हैं। खुर्रम अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए, सऊद अपने टैलेंट को, और बिलाखिर ये आहिस्ता गेंद जो थी विकेट का सबब ठहरी। इमरान खान ने अच्छी वापसी की, एक और विकेट हासिल की। यहाँ हैट्रिक पर आ गए थे आउट करके दानिश अजीज को। उसके बाद अनवर अली खेलने के लिए मैदान में उतरे। खुर्रम मंजूर आखिर तक लड़ाई लड़ते रहे और बाउंड्रीज भी वो पाते रहे। अच्छी बैटिंग की खुर्रम मंजूर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1 डाउन पोजीशन पर। ये उनका पहला टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान को, कोच को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। LBW उन्हें किया वसीम ने। शाहीन अफरीदी आज कदरे महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर करने के लिए दोबारा वसीम आए, जिसमें ये रन आउट का मौका पैदा हुआ था। 151 रन चाहिए होंगे क्योंकि अनवर अली ने छक्का लगा दिया था आखिरी गेंद पर। खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इमरान खान सीनियर ने 2 विकेटें हासिल की। आसिफ अफरीदी ने बड़ी अच्छी लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन बॉलिंग करते हुए 2 खिलाड़ी आउट किए और वसीम और अरशद इकबाल ने भी बिल्कुल मायूस नहीं किया। शाहीन अफरीदी जो हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगले मैच में उन्हें कुछ मुख्तलिफ करना होगा। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में लीना मोइन आ चुकी हैं, उनकी भी राय जानते हैं। सिंध की टीम को क्या करना होगा इस हदफ को बचाने के लिए। जी रन्स तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि 150 कोई रीजनेबल रन्स तो हैं। और अब बॉलिंग किस तरह की करते हैं, क्योंकि उस बॉलिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर कटर्स और स्लोअर बॉल्स और अगर स्पिनर्स भी धीमी पेस से बॉल करें, एयर दें, तो जैसे कि केपी के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की तो सिंध के भी बॉलर्स कंट्रोल कर सकते हैं। जहां फखर जमान की वापसी हो रही है और उम्मीद की जाएगी कि वो आज की शाम अच्छा खेलेंगे। अभी तक वो फखर जमान हमें नजर आए नहीं है जो 1 साल पहले यहाँ पर एक चैंपियन की तरह खेल रहे थे और अपनी टीम को टाइटल जितवा दिया था। 420 रन बनाए थे फखर जमान ने उस मैच में। इनके साथ रिजवान होंगे, मोहम्मद रिजवान जो कप्तानी भी कर रहे हैं, ओपनिंग भी करते हैं। ये डबल ड्यूटी है, अगर विकेट कीपिंग को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ट्रिपल ड्यूटी। जी हाँ बिल्कुल, आप फखर की बात करें तो बड़ा एक्स फैक्टर है फखर का।
किसी भी दिन आके वो किसी भी टीम को, चाहे पाकिस्तान के लिए खेलें या केपी के लिए खेलें, वो मैच जिता सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी, और इसलिए मैं तो पर्सनली उनकी फ़ैन हूँ। और यही मैं चाहूँगी कि वो खेलें, चाहे वो केपी की टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो। ऐसे प्लेयर्स को चांस देना ज़रूरी जी हाँ, मोहम्मद रिजवान 152 मैचेस में 3000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी औसत है, 104 बेहतरीन स्कोर। ये सेंचुरी उन्होंने इमसाल बनाई थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। अनवर अली आमतौर पर इनसे पहला ओवर कराया जाता है, अगर ये पहला ओवर बेहतर कर जाते हैं तो फिर जो है पेनल्टी मेट ओवर में पावर प्ले के भी इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी मैच में इन्होंने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल नहीं किया। अच्छी हिटिंग की है, अच्छे फिनिशर के रूप में एक बार फिर खुद को मनवाया है अनवर अली ने। एक स्लिप के साथ आएंगे लेफ्ट हैंडर फखर जमान को। कुछ वक्त लेते हैं, इब्तिदा में कुछ गेंदें सर्व करते हैं फखर जमान, क्योंकि नई गेंद पर पिच पे पहुंचते ही चौके छक्के लगाने में इनको कतरे दिक्कत होती है। लेकिन जब एक बार ये सेट हो जाएं, पिच के आव भाव से, गेंद की रफ्तार से इनका तालमेल हो जाए तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अच्छी बात है कि थोड़ा सा वक्त लिया जाए सेट होने के लिए, बॉलर को देख लिया जाए, पिच को थोड़ा सा समझ लिया जाए। एकदम अगर आप शॉट्स लगाने शुरू कर दें तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये जो मोहतात अंदाज आप जिसकी बात कर रहे थे, उसी तरह उन्होंने शुरुआत की अपनी इनिंग्स की। लेकिन उम्मीद है कि क्राउड की खातिर भी, और हम खुद भी चाहते हैं कि रन बनाएं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड के रिजर्व्स में शामिल हैं। और रिजर्व्स की बड़ी अहमियत होती है। किसी वक्त भी रिजर्व्स जो हैं वो नॉर्मल टीम है उसमें जा सकते हैं, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी, और इनका तजुर्बा भी है आईसीसी के इवेंट्स खेलने का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे, उसके बाद वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में 2019 का। क्या आला इनिंग्स थी वो। यहाँ पर अभी तक इनको जगह दी नहीं है अनवर अली ने, जिनमें ये अहलियत मौजूद है कि वो लेफ्ट हैंडर से गेंद को दूर भी ले जा सकते हैं। एक ज़माने में ये बहुत अच्छी इन स्विंग किया करते थे, बनाना स्विंग करते थे अनवर अली। रफ्तार भी अच्छी थी। जब इन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 का आलमी चैंपियन बनवाया था, इन्हीं के स्पेल से पाकिस्तान जीता था कोलंबो के मकाम पर। उसके बाद इनका एक्शन चेंज हुआ, और एक्शन चेंज करने के बाद ये वो बॉलर नहीं रहे जो एक्शन चेंज करने के पहले थे। ना स्विंग रही, ना पेस। और स्मैश या शानदार चौका फखर जमान का, बॉलर और मिड ऑन के दरमियान खेला। इससे यकीनी तौर पर इनके एतमाद में इजाफा होगा। जी हाँ, ऑन द अप बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लगाई, अपिश थी, लेकिन 4 रन्स के लिए गई ये मिड ऑन बाउंड्री पे। और यही वो चीज़ है जो कि फ़खर जमान कर सकते हैं, और इस तरह की शॉट्स उनके पास हैं जो बिल्कुल नक्शा तारीख बदल सकते हैं चाहे तो गेम का, अगर जिस दिन फॉर्म में हो उस दिन। ये और इस पिच में अच्छी पेस भी है, आप दूर से भी खेल सकते हैं। एक रन पर फखर जमान को यहाँ पर इक्तिफा करना पड़ेगा। जस्ट फॉर मैन स्कैन कीजिए इस क्यूआर कोड को और बड़े पुरकशिश इनामात आपको मिल सकते हैं। इस क्यूआर कोड को तो आप ही स्कैन करिए, ये जस्ट फॉर मैन है। जी, अभी तो मैदान पर जो कोड स्कैन करना है या डी कोड करना है वो सरफराज अहमद उनके बॉलर्स को करना है, उन्हें विकेटें लेना होंगी अगर वो चाहते हैं कि अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखें। पहले तो रिजवान का क्यूआर कोड उन्हें स्कैन करना होगा।
रिजवान का QR कोड बहुत अच्छा है। उन्होंने पिछले साल से वो परफॉर्मेंसेस दी हैं कि दुनिया जो है दंग रह गई है। सीधे बल्ले के साथ अपने शॉट को चेक किया। आखिर में रिजवान ने पहले ओवर में अनवर अली ने सिर्फ 5 रन दिए। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। बाबर आजम कप्तान है, शादाब खान नायब कप्तान है और सोहेब मकसूद ने कल 75 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और काफी दिलचस्पी पाई जाती है सिलेक्शन की बाबत। और इस बार दिलचस्पी है, खुद बॉलर को विकेट कीपर भी पीछे रह गए। फखर जमान ज्यादा एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सके, लेग साइड में खेलने के लिए गए थे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी शॉर्ट बॉल थी, बिल्कुल उनकी बॉडी के ऊपर थी, कोई चांस उनके पास नहीं था। लेग साइड पे जैसे आपने कहा कि खेलना चाहते थे और टॉप एज हुई, लकी रहे कि विकेट कीपर पहुंच नहीं सके। यहाँ चोट आई है यहाँ फखर जमान को, इससे फिजियो को उनने मैदान में तलब किया। देखिए उनके अंगूठे से खून रिसना शुरू हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी राह मंजिल की वो पाते नहीं, लहू से जो शम्मा जलाते नहीं। क्रिकेट खेल तो ऐसा है, अगर आपने मंजिल पाना है, राह को पाना है, तो फिर खून पसीना एक करना पड़ता। तारिक, आप जितना शायराना क्रिकेट को बना देते हैं तो उसका मुझे भी कोई अब मैच ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये शायरी जो है आपको जितनी अच्छी आती है, मुझे शायद आती नहीं है इतनी। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि फ़खर ज़मान एक मेन प्लेयर हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा चोट ना आई हो और ये ठीक हो जाएं। और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ख़ास, क्रिकेटर्स बड़े टफ होते हैं और एथलीट्स होते हैं, करेज बड़ी होती है इनका। एक बड़ी जो एक उनकी पर्सनैलिटी की बड़ी चीज़ होती है वो करेज होती है। तो बड़े करेजियस हैं, आराम से खड़े हैं और अपनी चोट को सही करा रहे हैं। जहाँ ये J. सुपर ओवर के मनाजिर हैं, देखिए ये शाहिद हैं, ये एक ज़माने में दुबई में हुआ करते थे, बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पर अपना इनाम पाकर सिकंदर बख्श से। सिकंदर भी बहुत खुश हो रहे हैं उनको इनाम देके। जी हाँ, इनका नाम भी बहुत दिलचस्प है। ये शाहिद सेल्फी के नाम से मशहूर हैं क्रिकेट हलकों में। काफ़ी देर तक न्यूज़ कैमरामैन थे दुबई और शारजा में। ये आदिल अमीन, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। इनसे ज़्यादा इनको बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए तो फिर कुछ बात कर लेते हैं। ये जो पाकिस्तान की टीम है वर्ल्ड कप के लिए और जिस पे बहुत बातें हो रही हैं, ये किसको होना चाहिए, किसकी जगह होना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि 13 तारीख को जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा लाहौर में, जिस शाम फाइनल खेला जाएगा, तो जो हतमी टीम है उसका फैसला उसी वक्त के लिए छोड़ दिया जाए। क्योंकि 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान इस बात का मजाज है कि वो टीम में तब्दीलियां कर सकता है। ICC की जानिब से ये एक रियायत मौजूद है। तो
तारिक, बड़ी दिलचस्प बात यह कि जिन भी प्लेयर्स पे स्कैनर था और बड़ी स्पॉटलाइट थी कि वो चेंज होके शायद दूसरे कोई प्लेयर्स आ जाएं, कल और आज के दिन उन सब प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दे दी। तो यानी कि सोचने की बात यह है कि इंसान पर जब स्पॉटलाइट हो और डू और डाई टाइप एक सिनारियो डेवलप हो जाए तो यकीनन ऐसी सिचुएशन में प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे देते हैं। और अपनी जगह पक्की करने की जब बात आती है तो खासकर बैट्समैन ज़रूर उस दिन परफॉर्मेंस दे देते हैं। ये मोहम्मद हसन जो हैं, इनको भी मुस्तकिल परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। और फ़खर ज़मान, उनके बल्ले की आवाज़ दूर तक गूंज गई इस मैदान में। आला बैटिंग का मुजाहरा ओपनर की जानिब से। जी हाँ, उनकी आर्क में, उनकी जोन में बॉल थी, स्लॉट में बॉल थी उनके लिए, और उन्होंने अपने फेवरेट जो काउस कॉर्नर होता है उस पर ये शॉट लगा के 6 रन हासिल किए। 145 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद के खिलाफ ये शॉट खेला और तेज बाउंसर, कोई मौका नहीं था विकेट कीपर के लिए भी, इसलिए सरफराज गिला कर रहे हैं। ये देखिए बाउंसर आपको जरूर करना चाहिए था, लेकिन इस सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर वाइड होगा और यहाँ पर ये वाइड के 5 रन मिल जाएंगे। देखिए बिल्कुल बेबस से सरफराज। ये जो यंग बॉलर्स हैं वो कई दफ़ा जोश में आ जाते हैं और इस तरह का बाउंसर कर देते हैं जिसके विकेट कीपर के पास कोई चांस ही ना हो या वाइड हो जाए। तो बाउंसर भी एक वेपन है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए एक तरीके से सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर। और शानदार एक और बुलंदो वाला छक्का। फखर जमान इस बार ड्रॉप हुए लेकिन मैदान के बाहर। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त शॉट एक दफ़ा फिर उन्होंने लगाया, लेंथ को बड़ा अच्छा रीड किया, स्लाइटली शॉर्ट बॉल थी, बैकफुट पे कैंप किया अपने आप को और फिर उसी एरिया में, काउ कॉर्नर एरिया में एक ज़बरदस्त छक्का लगाया। नई गेंद पर मूवमेंट मिलती है और यहाँ देखिए एक ही हाथ से कैच करने के लिए गए थे, ये भी कुछ ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं थी। इस बार स्लो डिलीवरी पाले में थी फखर जमान के, जो बहुत ज्यादा जोरों पर लग रहे हैं इस वक्त। इस ओवर में छक्का चौका और फिर 2 लगातार छक्के। जी हाँ, इस दफा बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट खेला हवा में और सीधा साइड स्क्रीन के पास आकर ये बॉल लैंड हुआ, उसके करीब, साइड स्क्रीन के करीब। बेहतरीन शॉट। एक बार फिर तेज गेंद करने की कोशिश की लेकिन लाइन से हट गए थे, मुंह की खाना पड़ी हसनैन को। और ऐसा लगता है कि जिन अब बोतल से बाहर आ गया है जब हम फखर जमान की बैटिंग को देखते हैं इस ओवर में। ये इस नेशनल T20 कप का सबसे महंगा ओवर भी है। इस चौके के साथ 27 रन बन चुके। जी हाँ, ज़रूरत थी कि अच्छी बॉलिंग करें लेकिन हसनैन आज बिल्कुल घबराए नजर आए, लेंथ का भी कुछ समझ नहीं आया उनको। ये पिछले 2 बरस में पाकिस्तान में T20 का सबसे महंगा ओवर था। 28 रन दे चले हैं हसनैन, 33 पर कोई आउट नहीं।
टपाल्टी का लम्हा है, और अगर फखर जमान के परस्तार हैं तो इससे अच्छा लम्हा नहीं हो सकता। फिर तो हमें भी पीनी चाहिए टपाल्टी यहाँ पर, हम भी परस्तार हैं उनके, जबरदस्त प्लेयर हैं वो। आप बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हसनैन जो है ये तकरीबन ये पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है। ये देखिए, ये बेहतर गेंद थी, बस चोट लगी और उसके बाद सारी चोटें फखर जमान ने की। देखिए गेंद को उड़ाते रहे, और सामने ये जो हिट थी एक के बाद एक, बिल्कुल उन्हें होश उड़ा दिए। जी हाँ, यंग बॉलर हैं हसनैन, उनके तो बिल्कुल होश उड़ गए। सबसे महंगा T20 नेशनल T20 की हिस्ट्री में ओवर था गालिबन। ये पिछले 2 बरस में सबसे महंगा था। रुमान रईस को बुला लिया गया है बॉलिंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़हीन है, इस तरह की सूरत हाल से भी निपटना जानते हैं। पिछले दोनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। तो मैं अपने सवाल पर वापस आऊंगा लीना के, ये तकरीबन पिछले 2-2.5 बरस से ये पाकिस्तान टीम में शामिल है। मोहम्मद हसनैन, तो अब तक ये सीख क्या सकें? इनके रनअप के भी मसाइल हैं, लाइन और लेंथ के मसाइल हैं, इनकी स्ट्रेंथ है, गेंद को स्विंग कर सकते हैं, नई गेंद को खासी रफ्तार के साथ फखर जमान को इन स्विंग कर सकते थे, लेकिन अच्छा लगता बड़ा नहीं है। मुश्किल इसका जवाब है, क्योंकि कई दफ़ा ये अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, जब इनका दिन होता है उस दिन ये अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन किसी भी बॉलर का जिस दिन दिन नहीं होता और बैट्समैन छाया हो और फखर जमान की तरह का बैट्समैन, तो फिर एक यंग बॉलर प्रेशर में आ सकता है। लेकिन देखना अभी क्योंकि उनका करियर शुरू हुआ है, तो देखते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट आती है, टाइम तो लगता है। जहाँ स्लोअर वन थी, गेंद उछली, इस बार फखर जमान को इस पर मुश्किल का सामना करना पड़ा, और अंपायर गए हैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, क्योंकि आजकल गेंद जिस रफ्तार से भी हेलमेट पर लगे तो एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है। रुमान रईस बड़ी अच्छी बॉलिंग करें, लेकिन वो भी कई साल बाद वापस आए, बड़ी उनको इंजरी हुई थी। ये देखें, स्लोअर बॉल बड़ा अच्छा करते हैं और बिल्कुल फॉलो किया बैट्समैन को, और हालांकि आसान नहीं है इतने दिन बाद क्रिकेट में आना और वहीं से पिकअप करना जहां से आपने छोड़ा था। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फखर जमान के लिए फील्डर को भेजा गया है। स्क्वायर लेग पर भी मौजूद थे सऊद शकील, एक रन का और इजाफा। रुमान रईस से ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मोहम्मद हसनैन हैं, वो T20 क्रिकेट के लिए ये बहुत मौजूद बॉलर हैं रुमान रईस, और ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा गेंद को तेज़ करना भी ज़रूरी नहीं है, बैट्समैन को रीड करना चाहिए, पिच और कंडीशंस के मुताबिक बॉलिंग करनी चाहिए। बड़ी शानदार बॉलिंग, इस बार सीम हुई और बात बन गई। रिजवान को LBW आउट करार दिया अंपायर कैसर ने। जी, रिजवान खुश नहीं नजर आ रहे, शायद उनको लग रहा है कि ये बॉल शायद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई हो और थोड़ी ऊंची भी लगी हो शायद। बहरहाल आउट हो गए। यहाँ बहुत ज्यादा अंदाजा लगा चुके थे रुमान रईस, जानते थे पिछले पैड पर लगी है, इसे जाना होगा। मोहम्मद रिजवान आज सिर्फ एक ही रन बना सके, केपी ने गवाई अपनी पहली विकेट 36 पे।
साहबजादा फरहान ये भी खुर्रम मंजूर की तरह वन डाउन के रोल में हैं, हालांकि ओपनिंग बैट्समैन हैं। 4 मिस सेंचुरियां ये पहले ही बनाए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहे हैं, एक अच्छे वाइट बॉल बैट्समैन के रूप में सामने आ रहे हैं। और धानी आए और ये जोरदार छक्का लगाया। थर्ड मैन पर फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये अच्छा फ्लैश करने में कामयाब हुए। जी हाँ, फुल फ्लो में है इस वक्त फखर जमान। अपर कट खेला उन्होंने और 6 रन हासिल किए, 4 रन गालिबन, क्योंकि ये जस्ट इनसाइड द बाउंड्री बाउंस की थी बॉल, तो 4 रन, लेकिन अच्छी शॉट, प्रोडक्टिव। यहाँ रुमान रईस गए थे गेंद रोकने के लिए, तो यहाँ पर तस्दीक हो गई कि 4 रन हैं। ये अच्छा मुकाबला है, धानी बनाम फखर जमान, और हवा में खेला, इस बार सामने रह गई। आज बहुत ज्यादा शॉट्स खेल रहे हैं। आमतौर पर शुरू में रिजवान शॉट्स खेलते हैं, फखर जमान मुख्तलिफ रूप में नजर आते हैं। आज रिजवान सेकंड फील्डर खेल रहे थे, लेकिन अंपायर को सिर्फ देखना था गेंद बाहर तो पिच नहीं हुई, और ऐसा लगता है कि शायद ये इस पट्टी के बाहर गिरी है। जी हाँ, ऐसा लग ही रहा था उस वक्त ही, लेकिन इसलिए देखिए रिजवान जिस टाइप के प्लेयर है नाखुश नहीं होते, वरना यहाँ ये दोबारा हम देखते हैं कि वो जो मैट बिछाया गया है, क्योंकि गेंद का पिच होना जरूरी है। उस मैट या तो ऑफ स्टंप के बाहर से या फिर उसके ऊपर, देखिए ये तो बाहर, इसका सिर्फ साया आ रहा है उस मैट पे, इससे रिजवान बदकिस्मत रहे। ये अच्छी बॉलिंग, इस बार फखर जमान को दूर से खेलने पे मजबूर किया, पीछे हटकर रूम क्रिएट करना चाह रहे थे और उनके जहन को रीड किया। देखिए ये फास्ट बॉलर की अच्छी डेवलपमेंट हुई है, ये सोच भी रहे हैं, थोड़ा पेस को भी वेरी कर रहे हैं, इनके पास बहुत पेस है, लेकिन थोड़ा विकेट को देख के स्लो भी कर रहे हैं बॉल को, तो ये अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इनकी। तो किसी की डेवलपमेंट तेज होती है और किसी की थोड़ी सी स्लो, और उसकी एक वजह यह है कि ये पिछला पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेले सिंध के लिए। एक और अच्छी डिलीवरी छोड़ती हुई गई फखर जमान को, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, सिंध की टीम ने अच्छा कमबैक किया है उससे एक महंगे ओवर के बाद। जी हाँ, अच्छी बॉल थी, और फर्स्ट क्लास सीजन जो आप जिसकी बात कर रहे थे, बड़ा ज़रूरी है कि अंडर द बेल्ट 4 डे क्रिकेट हो एक यंग बॉलर के। जितना आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट बैट्समैन, तो आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और ये उठती हुई गेंद थी, डाइव की यहाँ सरफराज अहमद ने, ये वाइड के 2 रन शुमार होंगे। 151 रन बनाना है जब आपकी मुखालिफ टीम को, तो आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास कंसीड नहीं कर सकते। ये बात उतनी बेहतर होगी जितनी जल्दी समझ जाएं सिंध के बॉलर्स। जी हाँ, उनके पास रन्स भी नहीं है बहुत ज़्यादा खेलने के लिए, तो यकीनन अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और हसनैन का जो स्पेल था पहले ही काफ़ी कॉस्ट कर चुका है, तो यकीनन बाकियों को अब इसकी जो है गलतियों को सही करना पड़ेगा, उनकी गलतियों को। यहाँ क्योंकि अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ, सिंध की टीम विकेटें लेकर कमबैक कर सकती है। अच्छी डिलीवरी सीम पर टिपा पड़ने के बाद तेजी से कट हुई। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए, केपी ने बनाए हैं 42।
Fakhr Zaman 34 of 19, and that has set the tone. Roman Reis has got the wicket of Rizwan in the last over. shop.pcb.com.pk, create an account and you've been a chance of winning a signed t-shirt of the World Cup 2021. Terms and conditions apply. Bit of shape, doesn't get the gap, just a single. So that one over from Arslan, which went for 28, if you cancel that out, the GFS Sindh bowlers have done quite well, but that just takes the game to another dimension. He did get under the pump, he did get sucked in, bowling pace, and Fakhr Zaman had his number. Yes, and the pace not going in his favor tonight. Turned it to the leg side, nicely timed with a couple of runs. Couple of runs added to the score. It's interesting to see Fakhr Zaman has scored 35 of the 45 runs for KP. 7 extras already conceded by GFS Sindh. And we were talking about KP's bowling, how disciplined they were. And when you're trying to defend a total like that, you cannot give such extras or a big over, 27, 28 run over. That will definitely hurt them. Roman Reis, well, he's been good. He's got a bit of shape and he's mixed up his pace as well. This one hits the seam and just slightly deviates away. It's not easy to judge his pace also. He keeps bowling those cutters, variations, and he deceives them really well. Very intelligent bowler, reads the batter well as well. And again, the length has to be perfect. And with that ball just shaping back into the right-hander, he can't afford to start it too straight. Almost middle and off is perfect. If he goes to that leg stump, he doesn't have a lot of protection behind the wicket. Fine in the circle. Beautiful shot. Just the length provided and it's just been hit back where it came from. Lovely boundary to end the fifth. Is 49 for 1. .8 runs now required of the remaining 15. Saibzada Farhan with a classical straight drive. Slightly over pitch, but the balance good. Just hit it back where it came from. Lovely shot. And Roman Reis faltering with the length. It was a bit full, but beautiful drive. Just look at that. Just past the umpire, no chance for Roman Reis to get a hand on that.
Oh, he'd given up. He had given up, direct hit, and that was it. And Farhan just jogged away because he knew it was a call that he responded to, but he had no chance whatsoever. Fakhar Zaman should do better. This is a team game and there's no pressure on Fakhar Zaman. He's batting on 36 of 21 deliveries. These kinds of singles are not needed, neither for himself, neither for the team. But we need them for excitement. Turned away leg side. Timed that beautifully. That's gone for 4. We actually didn't know how well he had timed that, and suddenly the ball skips away to the fence. Excellent timing again. 4 of the last ball of the over, this time around his legs. Shahnawaz Dhani offering that pace and line. Excellent timing. No chance for Saud Shakil. Yeah, better line. He gets the ball to shape back into the right-hander, so he has to start it just outside off. Once he starts it too straight, he's going to go down the leg side. And especially in the power play. A lot of times Shahnawaz Dhani comes into ball, it's after the power play where he's got more protection. But when he's bowling in the power play, these are the lessons he's going to learn. Oh, swing and a miss. He was eyeing that because the ball's going to dart back in. He's eyeing it over mid-on. Just maybe a touch more swing than he expected. He's beat the inside edge. And that low bounce also, the batters were talking about. This one kept a bit low also. And you don't see back-to-back failures from Rizwan. He was unlucky in the last match. Today, a very close decision also going against him. Big appeal, big shout, and a wide. And Shahnawaz Dhani, he's learnt that trick really well. If you have bowled a wide delivery, you need to appeal loudly. The appeal that he went for, who would have thought that he's knocked the cover off it? Great thing about it, he's always enjoying his cricket. Yeah, better length. We saw him padded up today also. It's a rare occasion. You don't see him pad up. Would have been great to see him bat as well. Lots to cheer about. Brighter fan of the match. It's been entertaining today, first match especially. Just want GFS Sindh to get a couple of wickets to make this match a little more interesting. Into the leg side again and just be the single. So the end of the power play is 56 for 1. नहीं फखर के लिए चाहिए होगा खुरम मिडॉन जा मिडॉन 9.33 the run rate that Khyber Pakhtunkhwa went in that power play. Now
Well, it's now or never. Zahid Mahmood, trump card being introduced. Leg spinners bowl well this national T20, and he needs to bowl extremely well and pick up a couple of wickets. You saw that the spinners knocked GFS Sindh back. Asif Afridi and Iftikhar in that little period after the power play really knocked the stuffing out of GFS Sindh's innings. Zahid Mahmood has to do the same. Started really well here, giving a bit of air, also a lot of revolutions on the ball. But no slips, Anna. You always advocating for a slip with the spinners. He's operating with none. Yes, that is with the new ball. When they are taking the new ball, that's when I'm advocating for it. But Zahid Mahmood has bowled 12 overs in this tournament with an economy of 5.6. He has also taken 6 wickets. So he's doing something right. The last match, he got 3 for 18, a match-winning bowling spell, and that's what needed of him today as well. Looks really good when he's bowling to the right-handers. Lovely, shabash. Decent start, just 2 off. Coming to the end of his over. Last delivery. Just seems as if Farhan and Fakhr are sitting on the leg spinner. No shot in anger yet. Smashed it straight down. Doesn't carry. Just a single. 7 done, 59 for 1. Going to plenty of places, this broadcast, but if you want to stream in high definition, PCB YouTube channel, PCB Facebook page is where you want to go. Looks like Arslan is back. Time to redeem himself. Arslan actually in that over hit Fakhr Zaman on the thumb, and it was after that that Fakhr Zaman didn't hold back. Right now he's brought back by Sarfraz to get them a breakthrough. 5 men in the circle, and Hassan over number 2 for him. Call for 2. They'll have to settle for 1. And Mohammad Hasnan has gone for 28 in the first over. The biggest over of the tournament so far, and that was Fakhr Zaman doing the damage. He was hit on the thumb. Deep mid wicket, long on, deep square leg. Fine leg in the circle now. What length does Hasnan bowl? Full and straight, timed really well. No, just a single.
Great fielding. Anwar Ali at the fence. Very good delivery there by Hasnain. He needs to make a good comeback, strong comeback. Has bowled some decent deliveries in this over to start with. Couple of balls, couple of singles. Sabzada Farhan doing the right thing, putting Fakhar Zaman back on strike. Hasnain was under pressure in the first over. Let's see what Fakhar Zaman can do in the next 3 deliveries. Short ball. He's been hit on the helmet. Well, he's had Hasnain's number in terms of hitting him for boundaries in that over, but he's also been hit. He's hit on his thumb first and now his helmet. And in between all that, he smashed Hasnain for quite a number of boundaries. A very good response by Hasnain. A very good, well-directed bouncer. And Fakhar Zaman had no clue where the ball went. Well, Fakhar Zaman started off with smash down the ground, and then that over was then taken apart. He's absolutely smashed him all around, big hits, leg side. And the over that has defined this inning so far. But in between the start of his innings, he got hit on his thumb by Hasnain, and just now it flushed on the helmet. Bang. Look at that, a very good bouncer. Well, seems all right. Everything's in order. He's dropped his bat, though. Yeah, picked that up. He's been doing well. That bat has been getting the ball out of the ground. And now let's see what happens, because the last time when he was hit on his thumb, he responded by just depositing everything out of the ground. Let's see how this bout goes, the second time around. Is Hasnain going to give him another one of those short deliveries? Here we go. Fakhar Zaman. Round number 2. A beautiful delivery. Yorker, he really bowled that one well. Still a delivery to go. It's a contest still brewing. Hasnain desperate to get revenge.
आपका कॉन्फिडेंस डेंट होता है। और इस दफा एक बहुत ही अच्छी शॉट 4 रन के लिए, फिर उनके आंख में बॉल दी और पूरा फायदा उठाया फखर जमान ने। चैलेंज किया उन डीप के 2 फील्डर्स को जो तलाश में है उस कैच के, टेक ऑन किया उनको और 4 रन हासिल कर लिए गैप में खेल के। और इस बार बड़ा शॉट, ये तो बहुत ही बड़ा शॉट था, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद कर दिया, जिसे आप कहते हैं कि मुंह में गेंद कर देना। बहुत ही शानदार शॉट। फ्लाइटेड गेंद थी और उसको अच्छी तरह देखा और बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ की तरफ लगा दिया फखर जमान ने। बहुत ही सुप्रीम फॉर्म में आज नजर आए और सरफराज भी कुछ परेशान, लेकिन आज अपने आप को कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है। बातचीत कम कर रहे हैं सरफराज, मेरे ख्याल में बातचीत थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और ये तो आउट है, ये तो आउट है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल पिछले कदम को नीचे करके उन्होंने बेंड डाउन करके शॉट खेलने की कोशिश की। जहां चांस लेंगे वहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और 10 रन खाने के बाद 2 गेंदों में अपना बदला लेने में कामयाब हो गए जाहिद महमूद। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, क्योंकि छक्का खा के डरे नहीं, दोबारा बॉल को फ्लाइट किया और विकेट लेने में कामयाब हुए। LBW आउट किया। बेहतरीन बॉलिंग मैं कहूँगी ये जाहिद महमूद की, और सेलिब्रेशन भी बेहतरीन। पिछले साल के टॉप स्कोरर फखर जमान इस बार 49 बना के आउट 73 पे 2। ठीक है, शाबाश, चलो ठीक है। छोटी मारने दे। पहली बॉल से ही मारने दे छोटी, कोई बात नहीं। ओ, ये स्क्वायर अंदर चाहिए, स्क्वायर अंदर आना। आदिल अमीन नए बैट्समैन। सही है, ओके। ये अपॉर्चुनिटीज हैं लीला जहां ये बैट्समैन गेम को आखिर तक लेकर जाएं। कोई बड़ा चेज नहीं करना है, स्कोर रिक्वायर्ड 6.9 है। अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराएं। जल्दी आ सजो। 11 रन तो मिल गए इस ओवर में, लेकिन सबसे बड़ी चीज कामयाबी है फखर जमान की विकेट 74 पे 2। नहीं, मिड विकेट नहीं चाहिए। दानी यहाँ आ जाओ। 1 मिनट, हसन वहीं रहे। दानी स्क्वायर लेग बेटा, पीछे ब्राइटों पे। सिकंदर, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे पिछले ओवर में कि यंग बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। जानू एक पे रहना। फरहान भी और आदिल भी, प्लेटफॉर्म भी इनके पास आज तो। पकड़ ये दानेश। अब ये खेल स्पिनर्स का है। 8 ओवर्स अपने बीच ये जो शेयर करेंगे, इसमें जितने कम रन हो दें और विकेट्स हासिल करने की कोशिश करें। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की मैंने, ये तो आप सभी जानते हैं जो इस गेम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह मैचेस हो रहे हैं। इसका अंदाजा फील्डिंग साइड को बिल्कुल है। ये वो विकेट फखर जमान की, मिडल ऑफ में क्रैश होती बॉल। और बिल्कुल इस दफा अंदर पिच हो भी रही थी बॉल, ये भी एक अच्छी बात थी। कोई दो राय नहीं थी कि LBW है या नहीं है। शाबाश।
जी हाँ बिल्कुल, पिछले पैर पे जब गेंद लगता है तो फिर गेंद के पास ट्रैवल का जो डिस्टेंस है स्टंप्स तक बड़ा कम होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मिस करता, और खासतौर पर जब आप एक घुटने पे बैठे हुए हों तो फिर तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। शॉट मिस कर दिया बैकफुट पॉइंट ने, ये डॉट बॉल होनी चाहिए थी, 2 हो गए। अच्छी फील्डिंग की जरूरत है बिल्कुल इस वक्त, बल्कि जहां 2 रन है वहां भी 1 अगर बचा लें तो अच्छा है। यहाँ पर तो अगर आप रन देंगे जब आपने खुद 150 बनाए हों और विकेट भी अच्छी खासी हो, बैट्समैन भी सेट हो, प्लेटफॉर्म भी हो। दूसरे के लिए वापस आएंगे और चांस लेते हुए थ्रो फ्लैट है कि नहीं, पहुंच गए शायद। रिएक्शन जो सरफराज का है उस हिसाब से तो लगता है कि पहुंच गए, थोड़ा सा लेट हो गया बॉल को रिलीज करने में जो फील्डर थे डीप में, फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं रेफरल के लिए। जी हाँ, अगर थ्रो बेहतर होती तो बहुत ही अच्छा होता। डाइव भी बड़ी अच्छी फुल लेंथ मारी इन्होंने, बिल्कुल गोलकीपर की तरह, और सरफराज बिल्कुल ठीक इस मौके पे थे। थ्रो बेहतर होनी चाहिए थी ताकि विकेट मिलने का चांस होता, और जैसे हम हर वक्त कहते रहते हैं कि विकेटें जो हैं कंप्लेक्शन ही चेंज कर देती हैं गेम का। चलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहुंच गए, और इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल हो जाएगा। ऑफिशियल डिसीजन है नॉट आउट, 80, 2 खिलाड़ी आउट। क्या बोलते हो? इसी से एक मिनट यहाँ आ जा। साउथ दो ना आगे रहना, 2 कदम। जायद महमूद कुछ करें तो करें जीएफएस सिंध के लिए, उनसे उम्मीदें वाबस्ता है सरफराज और उनके टीम मेंबर्स की। सारे शॉट्स को बैकफुट पे जाके 4 रन हासिल हो गए। यहाँ पर डाइव तो लगाई थी लेकिन शॉट बड़ा जोर का लगाया था बैकफुट पे जाके फरहान ने। एक बार रिप्ले में फिर देखना होगा लीना कि कितना मौका था फील्डर के पास डीप में इसको रोकने का। शाबाश जी, अच्छा एफर्ट था, लेकिन शायद फील्डर को हम इतना बुरा भला नहीं कह सकते जितना कि शायद बॉलर सोच रहे थे। कंपैरिजन भी अगर सिकंदर देखा जाए 10 ओवर्स के बाद तो तकरीबन 25 रन आगे है केपी के। इस मौके पे 60 रन थे और 3 आउट हुए थे सिंध के, और इसी मौके पे 85 रन पर 2 आउट हैं केपी के। देखिए जो पहला ओवर था ना आसिफ आफरीदी का जिसमें 2 विकेट्स गिरे थे सिंध के, उस वक्त से लेके अब तक सिंध कैचअप ही कर रहा है गेम में। इतना फर्क पड़ जाता है जब वो 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जिसमें पहले शान मसूद और फिर सरफराज, उसके बाद से चेजिंग गेम चल रहा है जीएफएस सिंध के लिए। तो वो आपको फिर हर कंपैरिजन में आपको पीछे ही दिखेंगे, क्योंकि वो इस वक्त गेम की पेस को पकड़ना चाह रहे हैं किसी तरह से कंट्रोल इनके हाथ में है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जगह नहीं दे रहा केपी। सेंट्रल फिगर जो रहे हैं सिंध के लिए वो उनके कप्तान सरफराज रहे हैं। पिछले मैचों पे रन भी बनाए हैं, मैन ऑफ द मैच भी मिला है उनको। तो आज जब वो जल्दी आउट हो गए तो जाहिर है प्रेशर पड़ गया, और नीचे जो हम उम्मीद कर रहे थे जिस तरह अनवर अली से कि वो रन बनाएंगे, वो उस तरह रन भी नहीं हुए। दानिश भी जल्दी आउट हो गए, तो दबाव तो पड़ा। पकड़ मार दे। सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल, 90, 2 खिलाड़ी आउट।
61 चाहिए हैं और 54 गेंदें हैं। पिछले ओवर में अगर आपने नोटिस किया हो, ये आप तो वो हम आपको बता रहा है कितना आगे है केपी। ये जाहिद महमूद की गेंद पे जो ऑन साइड की फील्ड है, 3 फील्डर बिल्कुल डीप में, बहुत बड़ा गैप। सारे शॉट्स बॉल की लाइन को कवर करके हल्के हाथ से ऑन साइड की तरफ खेल रहे हैं और 2 रन हासिल कर रहे हैं। ये थ्रो कहीं का कहीं चला गया, गेंद को ग्रिप नहीं कर पाए। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। अगर फील्ड को अंदर ले आया जाए और सर्कल सिंगल रोके जाएं तो दबाव डाल के गलती जो है वो निकलवाई जा सकती है। कैरेट को जिसको कहते हैं डैंगल किया जा सकता है, ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश करें तो उसमें भी विकेट मिल सकती है। इनको कोई ऐसा स्पेल चाहिए जहां पे यके बाद दीगरे कम से कम 2 से 3 विकेट्स गिरे। ये जो रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 7 का है, ये 11 पे जाए। टपाल्टी मोमेंट, और जैसे ही उनको अंदाजा हुआ कि इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और हम बिग स्क्रीन पर भी हैं, तो क्यों ना अपनी फेवरेट टी को भी सिप किया जाए। एज, और ये गेंद निकल गई सरफराज के बराबर से। 4 रन हासिल हो गए। थोड़ा सा रॉन्ग फुटेड हो गए थे सरफराज एक मोमेंट के लिए, तो वापस जाना जरा सा टफ था। देखिए, अगर आप मुश्किल मैच जीतने की कोशिश करें तो यहाँ अगर स्लिप होती तो आपका ये एक मौका बन सकता था। आपका फास्टेस्ट बॉलर गेंद कर रहा है, स्लिप तो होनी चाहिए, खासकर अगर आप एक लो टोटल को डिफेंड कर रहे हैं। तो बाउंड्री पे फील्डर से तो नहीं डिफेंड होगा, विकेटों से होगा। ये प्रेशर है जो इरिटेट करता है फील्डिंग कैप्टन को। सॉफ्ट हैंड्स के साथ सिंगल हासिल कर लिया, फिर हल्का सा पुश करके डीप में 2 रन हासिल कर लिए, और यही काफी है इस वक्त जो रिक्वायर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट। यही शॉट थी, यहाँ अगर होता स्लिप तो एक विकेट हो सकती थी। और प्रेशर क्रिएट करने के लिए दायरे के अंदर और फील्डर्स लाने चाहिए, बल्कि एक शॉर्ट कवर या शॉर्ट मिड विकेट भी हो तो उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है। बैट्समैन की आई लाइन में अगर कोई फील्डर हो उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है, और इस तरह टैप करके रन नहीं मिलते फिर। जिससे पहले खुर्रम मंजूर ने 50 रन मुकम्मल किया आज फिर इस अपनी एक इनिंग में, जिसकी मदद से ये 150 बना पाए जीएफएस सिंध। और वो एक जो ओवर चला आसिफ आफरीदी का, उसने तकरीबन काफ़ी फायर पावर निकाल दी जीएफएस सिंध की। वहाँ से संभलना बड़ा मुश्किल हो गया सिंध के लिए। बड़ा टोटल नहीं बना पाए इस अच्छी पिच पे। गेंद हवा में रही लेकिन बीट कर जाएगी फील्डर को, क्योंकि काफी वाइड हैं फाइन लेग के फील्डर, और 4 और हासिल हो गए। शॉर्ट बॉल थी, इसको हुक किया और 4 रन हासिल किए। कोई नहीं। अच्छी पार्टनरशिप इन 2 यंग प्लेयर्स के दरमियान, और ये कॉन्फिडेंस देगी पार्टनरशिप इन दोनों को। सौ रन मुकम्मल हो गए केपी के उस चौके के बाद, और इसमें कुछ और रन ऐड कर लीजिए, मिनिमम 2। रोमान रईस ने फील्ड किया और इस तरह ओवर का अख्ताम। 102, 2 खिलाड़ी आउट।
So under 50 now, 49 required, 48 balls, 8 wickets in hand. That's the important part of that bottom line. Chief scorer, Fakhar Zaman, 49 off 32. Farhan, 23 not out off 22 run a ball at the moment. Mahmood is continuing. He was delighted to pick up that wicket after a bit of tap. Advancing down the track. Has it gone far enough? Yes. 6 runs. Good way to start the over. I like his competitiveness, I must say. He's off very quick to that delivery and been able to connect it pretty well. He's a powerful offside player. It's underneath the ball. Mahmood gets very annoyed when runs are scored, and that's a nice way to be. You've got to be miserly, got to be nice and aggressive out there. Got to want to pick up wickets at all opportunities. He's got 2 men back straight. I suppose there's a bit of a chance to go on the charge here to try and improve a net run rate, but it's not much of a window. They might be looking to do that. Straight to the fielder though, just 1. GFS Sindh haven't lost a match in this National T20 so far. But it's just got to that phase of the tournament where things looking very tight. First 4 teams, first 5 teams even, pretty close together. And it's Sindh that knocked KP off the top. That's what they'll be looking for revenge. That's 6 more. It's a really good shot. Dragged on the onside. Not too much wrong with the delivery, it's got to be said, but the track is a good one. Yeah, slog sweep, full extension of the arms. Made sure that he hit it out of the park. He's got tremendous bat speed as well. Yeah, perhaps a little bit of width. Gave him a bit more room to use those arms, as you said, Baz. What have we got now? 35. 44 balls available. Hard down the ground. That's going to press the man back at long on, not just the one. Looks like there's a bit of packing going on up there. Shaheen Shah Afridi putting some kit away. Wouldn't have thought they'll be needing his services. That's the end of the over. No wide called in the end. You like the bowler who appeals when the ball's down the leg side. Off, over's done. Now the over's done. 118 for 2. The beige line, the jagged line, the thunderbolt that's going south. That shows their tracking and gives them less than 10% chance of winning now. Sindh. Well ball, Danish. Sorry, coming, just dropped it a little bit shorter. Plenty of people taking care of Fakhar Zaman. Didn't get enough of that, I don't think. Found some room out there. The spare acreage. Brings up the 50 stand off 28 balls. Adil Amin trying to smash this out of the ground. Inside half of the bat. Bat twisted in his hand and ended up in the gap. Is he
outside the line of the stump. Yes, looks like he was. Umpire says not out. Leg bye is going to be the result. Yeah, a long way across. That's a bit of a free opportunity, I think. Oh, goodness me. That's... That was a strange, eventful delivery. Started off with a ball that sort of dropped halfway down the track, slowly reached Sahibzada Farhan, who smashes it down the ground, right down the throat of Hassan, and he drops it in. That, I think, is 6. It is. 6 runs it is. To add insult for injury. I don't think anything else could have gone wrong with that delivery, actually. Wide, halfway down, dropped, and 6. Oh, yeah. No. So this should have been taken quite comfortably. How did he drop this? Made good position at this stage, and he looked like he had it totally covered. I think he was more surprised than anybody, well, apart from us too. Oh, fumble, and bails are off, so he's out. So it's all been happening in this over. End result is a wicket. They've lost another one of Khyber Pakhtunkhwa. Yeah, big swing, no connection, and a bit of a fumble, but he had plenty of time because Adil Amin had committed a long way down the track. He's gone stumped for 26, is 131 for 3. Iftikhar is the next man in. 134 games, very experienced, best of 90 not out, 15 50s, so he can certainly handle the willow. So 20 it is in 36 balls. They say if you have a bit of a fumble as a keeper, stay nice and calm and grab it the second time round. That's exactly what the experienced Sarfaraz did, and that was the result from the stump cam. Had no time to get back. Bowls were flying all over the place. So 131 for 3 it is, 14 gone. Ali into the attack, cries of catch it. Wow, goodness me, that is superb. What a grab that is. Sajil, it is. That is magnificent. Short ball, surprise ball from Anwar Ali. It's a top edge, and there was loud shouts going along. Catch it, catch it, catch it, and Sharjeel, full tilt, diving forward, takes a quality catch. Farhan played well for his 45. It's 131 for 4.
One of the over. One of the over. Covering. Musadik is the new batsman. Strike rate of 156, so we know what he likes to do. That grin tells a bit of a story as well. 20 still, 35 balls. No real dramas. Still only 4 wickets down. Oopsie. Heavily strapped, that thumb. Driving on the up, single. There we go, lots of attention to that thumb now. Really good catch, but the joy. Sarfraz and Sharjeel, the joy on Sharjeel's face after he'd taken the catch. But if he's not playing in the next game because his neck has been put out, we'll know why. Sliding down the leg side, it's a good shot from Amar Ali. His eyes were spinning, the bowler's eyes were spinning. He's hunting now. Yeah, just maybe sliding down leg. Anwar Ali didn't think so. And he made his presence felt. He's unpacking his bag. I thought he might be. He was packing it about 10 minutes ago. He's had to unzip it. He's now put a new grip on his bat. He's got the pads out as well. Just in case. There we go. He's picking it up, just checking it out in case he's needed. Nicely played. Oh, that's very smartly gone for 4. Right off the middle of the blade, that one. Look at the wrist work in that. It's all about the snap of the wrist. And the ball just races away. The power comes from that strong wrist work. It's nicely bowled, good comeback. He was so annoyed with himself that he allowed a bit of width to be put away for a boundary. Over was building up nicely after picking up that wicket first ball. Amar Ali. Slow delivery. There is protection out there. And that's a tidy over. Picked up a wicket as well. 15 gone, 137 for 4. पकड़ चाहिए No pace off that delivery at all. Might have been an edge onto the glove, or the bat hitting the glove. Edge onto the glove. Yeah, big edge. You can't expect the keeper to grab that. No, no chance. Oh, that's a big thumb too.
Because Alon's the man on the end of that thumb. So there's a lot of strapping going on there with that thumb. Let's hope he's going to be okay. बॉल तो मेरे हाथ पे लगा है, लेकिन फिर भी चेक कर लें. ठीक है चलो. वैसे तो बॉल मेरे हाथ पे लगा है, बॉल स्टंप पे ही लगा. I think they're checking if the ball hit the stumps or not. Sarfraz feels that the ball just hit his hand. That's all good. So the Bears just fell off with Sarfraz's glove touching them. So nothing. Absolutely nothing. Nope. Sarfraz knocked it off, and I think he was actually telling the umpires that it was okay as well. He was telling his fielders to get ready and let's get on with it. Dragging on the onside. Just the one. सामने ही रखना, ठीक है? आगे लिया मैंने, ठीक है? So it's within a couple of big hits now. Just 11 required. Sent back, no run there. सर बोले सर, सही है दानिश. लम्बा होने दे. Yeah, दानिश. Pretty nicely bowled by Danish Aziz, just looking to tuck him up. Lack of pace from time to time as well. There we go, there's no pace on that one. Wanting the batsman to do all the work. And that is the end of the over. 16 gone, 4 off that, 141 for 4. ये मिड विकेट आएगा, मिड विकेट. सही है. सिर्फ 10 रन की जरूरत है केपी को. पकड़ साउथ. ये सऊदी. लेकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं सिंध के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है. चंद अच्छे कैचेस भी देखने में आए सिंध की जानिब से, लेकिन रन्स बहुत कम थे डिफेंड करने में. फखर जमान पिछले मैच में गेंद उनके पांव पर लगी थी, इस बार हाथ पर लगी. हसनैन की अंगूठा जख्मी हो गया, लेकिन मुकाबला दोनों के दरमियान अच्छा हुआ आज. इस बार उठा खेला और क्लियर कर गए वाइड लॉन्ग ऑन को. जीत के और करीब किया ये छक्का लगाकर मुसद्दिक ने केपी को.
3 रन की दूरी पे है और मुसद्दिक माने जाते हैं बड़ी हिट्स लगाने के लिए। एक तरह से प्रैक्टिस सीन के लिए लेंथ भी मिल गई थी और आंख में आ गई थी गेंद। ये थोड़ा सा बासित अली ये हेड कोच हैं, उनके साथ मोहम्मद मसरूर अच्छे प्रोफेशनल कोच हैं। बासित अली का बहुत तजुर्बा है क्रिकेट में, जो आइंदा मैचेस में भी सिंध के काम आ सकता है। टॉस पे सरफराज अहमद ने कहा था 170-175 का हदफ को नजर में रख रहे थे, लेकिन आगाज अच्छा हुआ, बीच में फिर विकेटें गिरती रही और उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिरी गेंद इस ओवर की जिस पर रन हासिल करने से कासिर रहे मुसद्दिक। 17वां ओवर साइन ऑफ किया सऊद ने 149 पर 4। नहीं कर रहा वो, आजा दानिश दे दे। रोमी नीचे स्क्वायर लेग निकल जा। ये कल के मैचेस हैं। जीएफएस सिंध को अपना अगला मार्का नॉर्दर्न से बपा करना है। कल ये दूसरा मैच है, उससे पहले बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब की टीमें मुकाबला करेंगी। शर्जील खान आज बॉलिंग करने के लिए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं हम इनको बॉलिंग करते हुए। बैटिंग में ये बदकिस्मत रहे थे, लेकिन आज पेसर्स उस तरह चल नहीं सके, काफी उम्मीदें थी दहानी पे। हसनैन आज काफी महंगे रहे, 2 ओवरों में 32 रन T20 में देना एक जुर्म है। लेग साइड से तमाम फील्डर्स को आगे बुलाया है सरफराज अहमद ने, लेकिन इस लेग ब्रेक को फोर्स नहीं कर सके गैप में। ये दूसरा ही ओवर है T20 करियर का शर्जील खान का। बहुत अरसे से खेल रहे हैं इस फॉर्मेट में। सरफराज खास से खुश हुए शर्जील की लाइन और लेंथ से। और ये 8 बरस बाद T20 में को ओवर कर रहे हैं। और ये बुलंद बाला छक्का इफ्तिखार अहमद ने लगाया और खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया है। अच्छी ऑलराउंड कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की। पिछले मैच में सेंट्रल पंजाब के हाथों उन्हें शिकस्त हो गई थी और टूर्नामेंट की बड़ी इनफॉर्म टीम जीएफएस सिंध को उन्होंने पिंडी में हरा दिया। इफ्तिखार अहमद ने कहा बहुत हुआ, 3 गेंदें देख ली थी और उसके बाद मौका मिलते ही उन्होंने जीत अपने नाम की। और सिंध आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में थोड़ा स्ट्रगल करता रहा है। और एक और कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा के नाम। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान आज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन आने वाले बैट्समैन ने जिम्मेदारी ली। स्टंप्स की लाइन में गिरी हुई इस लेग ब्रेक को खेला इफ्तिखार ने पूरे वसूख के साथ। ये एक नया मैचअप है। गालिबन बता रहे हैं कि 3 बॉलें मैंने मारने नहीं दी, इसके बाद चौथी पे इन्होंने अपना चांस लिया। इफ्तिखार 9 रन पर नॉट आउट, मुस्तदिक 16 रन पर नॉट आउट। और इस तरह आज का ये दूसरा मुकाबला भी खत्म हुआ। अच्छी बॉलिंग की वसीम जूनियर ने। आज शाहीन अफरीदी के अलावा तमाम ही बॉलर्स जो थे वो अपनी धाक बिठाने में कामयाब हुए। और यही सबब था कि बैट्समैन का काम आसान हो गया। लेकिन अभी ये टूर्नामेंट बहुत बाकी है। ये 2 सरकर्दा टीमें लग रही हैं।
कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा जिन्हें 151 रन बनाना थे, फखर जमान ने शुरू में बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली। उन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए, नेशनल T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद हसन के उस ओवर में सिर्फ 1 रन की कमी से वो अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। रिजवान के आउट होने के बाद फरहान ने एक और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। ये 1 डाउन की पोजीशन भी उनको रास आई है। आदिल अमीन 26 रन बनाकर आउट हुए और बाकी का काम किया इफ्तिखार अहमद और मुसद्दिक ने। और ये अहवाल रहा सिंध के बॉलर्स का, आज पेसर्स पे जितनी उम्मीदें थी नहीं उतर सके। अनवर अली हसनैन काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 16 की इकोनॉमी थी। उसके बाद जायद महमूद से काफ़ी उम्मीद थी लेकिन सिर्फ 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। रुमान रईस, अनवर अली और दानिश अजीज ने भी 1-1 विकेट हासिल की लेकिन रोक नहीं पाए केपी को इस हदफ। ये इस मैच का खुलासा है। खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीता, उन्होंने सिंध को पहले बैटिंग की दावत दी। 150 रन स्कोर किए सरफराज अहमद की टीम सिंध ने, जिसमें खुरम मंजूर ने निस्फ सेंचुरी बनाई। सऊद शकील ने 32 रन स्कोर किए, लेकिन शर्जील खान जो बहुत अच्छा खेल रहे थे 25 रन बनाकर जब उनको कॉट बिहाइंड आउट दिया गया तो उसके बाद कहानी एक नया मोड़ मुड़ गई। तो खैबर पख्तूनख्वा ने बाद में सर उठाने का मौका नहीं दिया अपनी हरीफ टीम को। फखर जमान ने 49 और फरहान ने आला बैटिंग करते हुए 45 रन स्कोर किए। दोनों टीमों के दरमियान 6 विकेटों का फर्क रहा। तो ये पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है। GFS सिंध की टीम इस नाकामी के बावजूद पहले नंबर पर है। उनकी नेट रन रेट दीगर टीमों से बहुत अच्छी है। पहले तीनों मैचेस वो जीत गए थे। नॉर्दर्न ने भी आज दूसरी कामयाबी हासिल की, बल्कि 24 घंटों में उन्होंने 2 फतुहात समेटी। उनके पॉइंट्स अब 6 हो गए हैं। केपी के भी 6 पॉइंट्स हैं और होम सिटी सेंट्रल पंजाब की टीम अभी तक पहली 4 में जगह बनाए हुए है। बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर उनको पेशकदमी करना है। तो यहाँ अब एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब।
हेलो एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। शानदार विक्ट्री रही केपी के लिए आज जीएफएस सिंध के अगेंस्ट और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनके पॉइंट्स और बढ़ गए और पोजीशन भी ऊपर आ गई टेबल में। जीएफएस सिंध अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है। इससे पहले कि मैं दावत दूं इनामात के लिए प्लेयर्स को, मैं थैंक यू करना चाहूँगा मिस्टर वलीद मुदस्सिर साहब को ऑन बिहाफ ऑफ होम एज अप्लायंसेस, यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। और उसके बाद मैं आपकी अटेंशन लेके जाना चाहूँगा उस प्लेयर की तरफ जिन्होंने आज 45 बनाए 30 गेंदों पे। ये हैं होम अप्लायंसेस के मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर, 15,000 का अवार्ड साहिबजादा फरहान। शानदार परफॉर्मेंस की। इतना बड़ा टोटल चेस करने का नहीं था, लेकिन ट्रिकी हो सकते हैं ऐसे टोटल्स, और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी बैटिंग से और मेक श्योर किया कि ये स्कोर पूरा हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं आज के प्लेयर ऑफ द मैच की तरफ। सबसे पहले मैं दावत दूंगा 49 रन 32 गेंदों पे फखर जमान, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच। पहले साइन करेंगे वो ब्राइट ओपेंस फैन ऑफ द मैच बॉल, और इस बॉल को साइन करने के बाद उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलेक्ट करेंगे वो अपना पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी और कैश अवार्ड 25,000 रुपए का। 49 बनाए 32 गेंदों पे ओपन किया आज केपी के लिए। फखर से जरा बात करते हैं। फखर, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो अंगूठे में आपके पट्टी बंधी हुई है, इसकी क्या सिचुएशन है, क्या कहते हैं फिजियो? फिजियो ने बोला कि 4 से 5 दिन लगेंगे इसमें, तो 4-5 दिन का रेस्ट है। कितना टफ होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ चेंजेस भी किए थे, पहले रिजवान ने, आप आउट हुए, फिर इन आए, वापस आके फिर वापस अपनी इस रिदम को कंटिन्यू करना टफ होता होगा? नहीं, मुझे साथ नसीम शाह का बॉल लगा था पिछले मैच में, तो उसकी वजह से मैं लास्ट मैच नहीं खेला था, लेकिन इस मैच में भी तकरीबन 50-50 था, लेकिन कोच और कप्तान ने बोला कि आपने खेलना है, तो वो मैं इंजर्ड था इसलिए नहीं खेला था। कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैटिंग को, क्योंकि हमने देखा जितने भी टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान के, थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल हो रहा है पेस की वजह से। आपको पेस पसंद है आई सपोज, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है इमीडिएटली रन बनना। देखें, टूर्नामेंट जहाँ भी होते हैं तो शुरू में विकेटें उस तरह होती नहीं है, तो शुरू के मैचेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, रन्स बनाने उस तरह आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट्स आगे जाते हैं तो विकेटें भी अच्छी हो जाती है, और वही हो रहा है कि अभी आप अगर देख रहे हैं तो रन्स बनना शुरू हो गए, और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि जितने भी बैट्समैन हैं वो लंबा स्कोर करेंगे। चलिए, वेल प्लेड टुडे। आपको लाहौर में एक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। फखर जमान आज के प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैं दावत दूंगा सरफराज अहमद को, कप्तान जीएफएस सिंध के, वो आके हमसे बात करें। कहाँ से स्टार्ट करें? आई थिंक जहाँ आपकी विकेट गिरी है, थोड़ा सा कैचिंग अप ही चल रहा था, फिर आप गेम में वापस आने के लिए कोशिश ही कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे एज अ टीम। जी बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप में लगी हमारी, अगर अर्ली ऑन पार्टनरशिप लग जाती, थोड़ा लेटर ऑन लगी सऊद और खुर्रम की, और मैं समझता हूँ कि 15 रन शॉर्ट थे, अगर वो थोड़े रन हो जाते और हसनैन का अगर वो 28 रन का ओवर नहीं होता तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। इस पे यही आना चाह रहा था कि आपके बॉलर्स ऑफ कोर्स काफ़ी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे क्या लेंस चलेंगी उसके लिए शायद आप डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा किस तरह केपी आपके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा था। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल जैसे जैसे पिच बेहतर होती जा रही है, आपको रूम नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा वेरिएशन से बॉल करने पड़ेंगे, तो बैक टू बैक मैचेस हैं हमारे, इसलिए बॉलर के साथ थोड़ा सा बात करेंगे बैठ के किस तरीके से बॉलिंग करनी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, गुड लक नेक्स्ट टाइम। आपका कल मैच है, विल सी यू टुमारो। थैंक यू। सरफराज अहमद, कप्तान जीएफएस सिंध, और अब मैं रिजवान को दावत देना चाहूँगा, विनिंग कैप्टन आज के केपी के। रिजवान, आपने कई बार टॉस पे कहा है कि टॉस का इतना फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी टीम की फिर स्ट्रेंथ आपके बकौल क्या है, बॉलिंग या बैटिंग? अब बॉलिंग जी बिल्कुल, मैंने टास्क कराया भी ये कह दिया था कि हमारी बॉलिंग माशाल्लाह तगड़ी है, और हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छे, मतलब जैसे पहले मैच खेला है 200 रन हुआ है, फिर चेज हुआ है, तो ये कोशिश थी हमारी कि कम से कम रन पे स्टिक करे। इस तरह हमारे बॉलर करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो है कि हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मगर ये यहाँ पे क्रेडिट मैं ज़रूर फ़खर जमान को दूंगा, जिस तरह उसने उसका उंगली जो है ना मैच के दौरान पट गई थी, उसके बाद उसने जिस तरह अटैक किया उन पे, और वहाँ पे एक ही ओवर में उसने मैच सीधा कर दिया था। थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है, फ़खर के पहले पैर में लगा था गेंद, अब हाथ पे लगा है, तो आपको ये स्वैप करना है। लेकिन ये जो चेंजेस आपके, आई थिंक प्लेइंग 11 तो आपने किसी तरह से आपने रख ही लिया है अपना इस टूर्नामेंट के लिए। देखिए जी, अब अगर हम लास्ट के मैचेस भी देख लें या लास्ट टूर्नामेंट देख लें या भी देख लें, हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि हम चेंजेस वगैरह करते रहेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बैड लक है कि फ़खर को लग रही है, हम चाहते हैं कि वो रेस्ट करे बजाय इससे कि उसको बॉल लग जाए, मगर हमारे प्लेयर के लिए तो यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम आगे थोड़ा सा हमारे टेबल पे अच्छे आ जाते तो इंशाल्लाह हमारे आखिरी के 3-4 मैच डिफरेंट होंगे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। आप इस जीत के बाद टेबल में ऊपर तो आए हैं, काफ़ी मैचेस अभी बाकी हैं। गुड लक टू यू फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। रिजवान, कप्तान केपी के, और प्रेजेंटेशन से अभी इतना ही। जी हाँ, तो ये कल होने वाला पहला मुकाबला है। बलूचिस्तान की टीम दोबारा मैदान में उतरेगी, एटीएफ सदरन पंजाब से उनका सामना होगा, और
2:45 से आप ये बराह रास्त देखेंगे। दूसरा मैच भी खेला जाएगा जुमे की शाम ही, यानी कल 7:15 बजे से। ये नॉर्दर्न और GFS सिंध की टीमें मुकाबला करेंगी। तो अब आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर। Beautiful looking shot. Has that hit the gap? You bet it has. उंगलियां जरूर लगी थी स्लिप में, लेकिन गेंद निकल गई हाथ से। That is magnificent work. फखर जमान, उनके बल्ले की आवाज दूर तक। और शानदार एक और बुलंदो वाला छक्का। So he's out. What a grab that is. So Jill it is.